Okay, good morning. So let's start our today's class. What we have seen yesterday, हमने कल क्या complete किया था? Population group disbanding. Sorry, Anisha. Population health nursing start करें. We have started new chapter, that is population health nursing. In that, what topics we have completed? Which topics? કઈ population કઈ વસ્તુના હોય એમાં કયા disease વધારે જોવા મળે. Okay, so we have seen healthcare disparities or health disparities. After that, Nursing assistant, nursing assessment, and after that, common infection, COVID-19. minority groups we have completed, and in that minority groups we have completed different population and which are the common disease conditions that are prevalent in that specific population. So let's do a quick revision of our previous class. Okay, so what is healthcare disparities? Equality મળવી જોઈએ બધાને ના મળે healthcare. Yes, yes. असमानता, healthcare differences, वो जो भी वो experience करते हैं, that is called as healthcare disparities. Which are the vulnerable groups who experiences or who are at risk of healthcare disparities? LGBT, LGBTQ group, Refugees, refugee, immigrants, yes, પછી disability હોય પછી those who not English complete ના બોલી શકતા હોય. yes, women છે, yes. poverty, Minority groups, uninsured person or underinsured person, then homeless persons, incarcerated, and LGBTQ group. So these are the vulnerable groups who are at a risk for healthcare disparities. Okay. Then what we have seen, as being a nurse, what is our duty? Disparities થતી હોય તો આપણે નહીં કરવાનું. We have to identify whether these person are of vulnerable group or not. ये पर्सन है वो vulnerable group में है, अगर vulnerable group में होगा so there are risk of healthcare disparity. So being a nurse we have to avoid these disparities. We have to aware that disparities will happen and disparities exist in this whole world. So we have to plan accordingly and we have to avoid or prevent those disparities. Then we have seen common US problems, infection, common health disease, chronic health disease, and infectious disease. So which are chronic health problems in US? heart disease, cancer, heart disease, cancer, diabetes, Yes, stroke, kidney disease. These are the chronic health problems. What are the risk factors? alcohol or obesity. Yes, and one more. Physical exercise. Yes, lack of physical activity or sedentary lifestyle. Which are the common infectious disease, online students? That are more. COVID-19. Yes, COVID-19. Influenza. Influenza. salmonella type B, Yes. hepatitis C, Pneumonia. Pneumonia. Herpes simplex 1, herpes simplex 2. Yes, herpes simplex 1 and 2. staphylococcus aureus, Yes. Sexually transmitted disease. Yes, STI, E. coli, norovirus, shigellosis. These are the common infectious diseases which are prevalent in USA. Then we have seen nursing assessment. In nursing assessment, what we have seen? हमने क्या देखा था? First, how you will start the communication? પહેલા introduction આપવાનું. We have to introduce ourselves and why you are here. What is your role? What you are going to do with the patient? You have to tell that these things to the patient. Then you have to take permission. I want to ask you certain questions for your information. Can I have this permission? और ऐसे करके आप permission लेके questions पूछोगे. पहले general background के patient की information निकालनी है कि patient क्या है, कैसा है. So general background related questions पूछना है. The list of questions are already given in box 5.3.
उसमें से जो भी एप्लीकेबल है वो क्वेश्चंस पूछने हैं। इसे इट इज नॉट लाइक दैट कि ये सारे क्वेश्चन सारे पेशेंट को पूछने हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। ये क्वेश्चंस रीड करके आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं पेशेंट को, तो जो भी एप्लीकेबल है वो आप पूछ सकते हो। आपको जनरल बैकग्राउंड मिल गया पेशेंट का, सो उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर क्वेश्चंस पूछोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट नीड। क्लाइंट की कौन से क्वेश्चंस की क्लाइंट को नीड है उसके हिसाब से आप पूछोगे। सो कौन से क्वेश्चंस हमने देखे थे, बेस्ड ऑन फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन living situation, yes yes financial status, yes Related to abuse. related to yes related to abuse, gender or sexual orientation, then related to Insurance coverage. related to mental health, mental health, yes Insurance coverage. yes insurance coverage kitna hai, whether they are under insured, uninsured, or they have insurance. Then you have said immigrants, yes yes chronic illness के बारे में क्वेश्चंस पूछोगे, वेटरन और मिलिट्री स्टेटस आप आइडेंटिफाई करोगे, देन इनकार्सिरेशन के रिलेटेड पूछोगे पेशेंट, हाँ वो अगर प्रिजन में है तो कैसा है। लास्ट में एट लास्ट विच क्वेश्चन यू विल आस्क टू द पेशेंट, yes is there anything you want to share with me, or is there anything related to our health progress, और कुछ भी health related आपको मुझे share करना है, other things if you want to share you can share. So this is the questions. What is the first, which things we have to focus first, किस पर કે જે फोकस patient કે જે patient નો report છે મતલબ એના symptoms છે એના પર પહેલી need હોવી જોઈએ. हाँ पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, सो फोकस ऑन दैट। पहले एब्डोमिनल जीआई सिस्टम का असेसमेंट करो, बाकी का बाद में करना। पेशेंट को जो प्रॉब्लम के लिए आया है उसको सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए ना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, सो डॉक्टर ने और नर्स ने मुझे देखा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे सो पेशेंट फॉलो अप ही नहीं करेगा, आपके पास फिर से आएगा ही नहीं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द रिपोर्टेड सिम्टम्स फर्स्ट, देन we have to be aware of culture, patients, Beliefs, ethics, values, हाँ पेशेंट की communication, क्या है, language, यस एवरीथिंग, पेशेंट के बिलीव्स क्या है, एथिक्स क्या है, मोरल्स क्या है, पर्सनालिटीज क्या है, वो क्या बिलीव करता है, वो हमें पहले उसके बारे में अवेयर रहना है, उसके अकॉर्डिंग हमें केयर देनी है। एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज अवर ओन बायसेस एंड वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू द पेशेंट। सो अगर ये जो दो फैक्टर्स है उससे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ केयर दोनों अफेक्ट होता है। अगर आप रिस्पेक्टफुल रहोगे तो सेटिस्फैक्टरी लगेगा पेशेंट को, अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल रहोगे तो patient will not get satisfied with the care. Then what is the really important point? Yes, online students, what is the really important point? We have to encounter or question the client regarding their need, perspective, their preferences, उनकी नीड क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, वो कैसे परसेप्ट कर रहे हैं। सो वो हमें पहले एनकाउंटर करना है, पहले जान लेना है। इससे आपको क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपको पेशेंट की केयर कैसे करनी है, कैसे वो पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेबल मैनर में, रियलिस्टिक मैनर में आप कैसे केयर करोगे, वो आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाएगा। सो ऑलवेज आस्क टू द क्लाइंट। देन स्टीरियोटाइपिंग के रिलेटेड क्या देखा था हमने, સ્ટીરિયોટાઇપ અવોઇડ કરવાનો, Stereotype avoid करो. અઝમ નહીં કરી લેવાનું, ડાયરેક્ટ વી હેવ ટુ આસ્ક. हाँ इफ द पेशेंट बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक ग्रुप और पॉपुलेशन, वी डोंट हैव टू अज्यूम कि हाँ ये पॉपुलेशन से बिलोंग करता है तो ऐसा ही होगा। वी हैव टू ऑलवेज आस्क टू द पेशेंट, दो द पेशेंट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, उसके प्रेफरेंसेस उसके परसेप्शंस डिफरेंट हो गए। सो वी हैव टू अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग। एक माइंड सेट नहीं कर देना है कि पेशेंट ये पॉपुलेशन का है तो ऐसा ही होगा। सो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। देन we have seen about COVID-19. COVID-19 में हमने क्या देखा था, which are the vulnerable groups, जिनको रिस्क ज्यादा है कोविड इलनेस का एंड डेथ भी हो सकती है। elderly patient, एल्डर पेशेंट्स, ક્રોનિક ઇલનેસ, Diabetes. chronic illness like ડાયાબિટીસ, હાર્ટ ફેલ, diabetes, heart diseases and કેન્સર, respiratory disease, yes cancer, જેને immunity suppressed,
हाँ, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वेदर फ्रॉम द कीमोथेरेपी और ड्यू टू एनी डिजीज, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है कोई भी है, उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई है, सो ऐसे पेशेंट को रिस्क ज्यादा है। अदर एक ग्रुप था माइनॉरिटी ग्रुप, उनको भी रिस्क ज्यादा है। सो COVID-19 के सिम्टम्स आर ओनली लिमिटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? No. No, it's नो, serious. other than respiratory symptoms, there are additional symptoms. Like, what are the symptoms? Tell me, respiratory and other symptoms. GI disturbance, Yes, nausea, vomiting, Muscle nausea, pain, sore throat, yes, and respiratory Loss of symptoms. taste and smell. Yes, difficulty in breathing, difficulty in breathing. fatigue, runny nose, Yes, body ache, muscle pain, sore throat, fever, and respiratory congestion. These are the symptoms, overall symptoms. When it is the warning sign, when it is the emergency situation, आपको कब पता चलेगा कि these are the warning signs, you have to do something right now. What are the First- emergency? persistent pain in the chest, breathing, Yes. पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, दैट वुड बी सीवियर, बहुत सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। परसिस्टेंट पेन या फिर प्रेशर लगा रहेगा चेस्ट में, पेशेंट को लगे चेस्ट हैवी हैवी लगेगा, परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली। कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट उसका, बिकॉज जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है धीरे धीरे डिटोरियोरेट हो रहा है, सो उसकी नई कंफ्यूजन डेवलप होगी, कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट अवेक नहीं रह पाएगा। एंड wake up, अगर सो रहा है so patient is unable to wake, or if patient is awake so it is difficult to stay awake and cyanosis start हो जाएगा। तो these are the warning signs, emergency situation arise हो गई है, you have to do something right now। then COVID-19 is highly contagious, so कौन से other population है जिनको रिस्क ज्यादा है? फर्स्ट तो जो क्राउडेड crowd, रीजन्स में, हाँ, सो एक ही इंस्टीट्यूशन में ज्यादा लोग रहेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देन लाइक नर्सिंग होम्स, प्रिजन्स। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी है, फिर ऐसी कोई जगह होती है कि जहाँ बहुत लोग एक साथ में ही रूम शेयर, डॉर्मिट्रीज। आपको पता है व्हाट इज डॉर्मिट्रीज? ડેડ બોડીને રાખે તું જગ્યા नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉर्च्यूरीज, डॉर्मिट्री। डॉर्मिटरी में क्या होगा कि एक बड़ा रूम होगा एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स दैट कैन शेयर, लाइक 20 से 25 लोग दैट इन अ बिग हॉल दे विल शेयर दैट रूम, सो दिस आर कॉल्ड एज डॉर्मिटरी। सो जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पर रिस्क ज्यादा है स्प्रेड होने का। अदर कॉमन पर्संस हु आर एट रिस्क आर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर एनवायरमेंट में काम करते हैं, देन जिनको हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है, दे आर इनकंसिस्टेंट टू हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, वो हेल्थ केयर का एक्सेस ही नहीं कर पाते, हॉस्पिटल नहीं जा पाते, देन जिनका ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स लो है एंड जिनको स्ट्रेस है, दिस आर द अदर पॉपुलेशन जिनको रिस्क ज्यादा है कि उनको भी COVID-19 हो सकता है। बीइंग अ नर्स, व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमें क्या करना है? educate the public, Yes, we have to educate the public how to spread the COVID-19, prevent to the spread prevent of spread. COVID-19। yes, तो उसमें क्या पेशेंट, आप क्या बोलोगे पब्लिक को? distance maintain करो, yes, mask hand wear, wash, hand wash, हम्म, face पर touch करवानो avoid करवानो, हम्म, avoid crowded, मतलब yes, हाँ, Covering nose and sneezing, mouth neck when sneezing coughing, and coughing. yes, cover the mouth and nose while sneezing and coughing, then avoid 15 days contact patient who are Self sick, quarantine. Self quarantine. self quarantine, self isolation भी आपको सिखाना होगा। then we have seen certain minority groups, minority groups means yes, those who are having less number of population, जिनकी population कम है, they are called as minority group। और healthcare disparities किसमें ज्यादा देखने को मिलेगी? in minority group minor, compared to मेजोरिटी और नॉन माइनॉरिटी ग्रुप्स के कंपैरिजन में इनमें हेल्थ डिस्पैरिटीज ज्यादा होगी। सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन देखी थी? कैन यू लिस्ट इट आउट? Hispanic,
Hispanic Americans or Hispanic Latins. Then Native Hawaiians and Pacific Islander. yes, Native Hawaiians and Pacific Islanders. Then Native American and Alaska Native, or Native. African American. African American, yes, Asian African American. American. Asian Americans. Okay. So tell me, which are the common disease conditions in Hispanic Americans or Latins? Diabetes. Yes. Cervical ESRD. cancer. Okay. So obesity, DM, Obesity. ESRD due to Diabetic. डायबिटीज. डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई एंड डायबिटीज की वजह से अगर किडनीज पर डैमेज हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? We have studied this in endocrine system. The complications of Nephropathy, diabetic nephropathy. yes, diabetic nephropathy. This is called as diabetic nephropathy. Diabetes की वजह से nephrons damage हो गए हैं. Then cervical cancer. These are the common health problems in Hispanic Americans. What are the common problems in Native Hawaiians and Pacific Islanders? Smoking, alcohol consumption. Yes. Excessive smoking and alcohol consumption. HIV. AIDS. Yes. HIV, AIDS. Hepatitis B. Yes. Hepatitis, Tuberculosis. SIDS. High TB. incidence of Obesity. infant mortality rate. Yes. There is high number of SIDS. So sudden infant death syndrome. What is that? Sudden Achana. death in infant. Suddenly, yes, the infant becomes the infant died because of any reason. So that is called as SIDS. Then diabetes, obesity. These are the common disease condition. TB is also there in Native Hawaiians and Pacific Islanders. Next group is Native Americans and Alaska Natives. In this population, which are the common problems? Infectious disease. Infectious disease इसमें common है. Why? क्योंकि Poor proper water supply supply नहीं and sewage हाँ, disposal. they are living in isolated zones. वो geographically isolated रहते हैं, अलग रहते हैं. So वहाँ पर proper वाटर सप्लाई नहीं है, सीवेज का डिस्पोजल अच्छे से नहीं है, तो उनमें इन्फेक्शियस के रिस्क ज्यादा है, इन्फेक्शियस डिजीज के रिस्क. देन DM. यस, स्मोकिंग, अल्कोहल, डीएम, हार्ट डिजीज, cancer, stroke. Stroke. And यस, कैंसर, Mental health. स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, एक्सीडेंट्स. Mental health. यस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनको देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से सुसाइड भी उनमें ज्यादा देखने को मिलता है. देन Control. सीड्स, Teenage यस, pregnancy. टीनेज प्रेगनेंसी Hepatitis. and liver disease. Yes, these are the common problems in Native Americans. What are the problems in African Americans? Okay, online students. Asthma, heart disease, cancer, hypertension. DM and obesity. और उनमें डेथ किसकी वजह से ज्यादा होती है? Which are the three disease conditions जिसकी वजह से डेथ ज्यादा होती है? Cancer. heart Heart disease, disease, cancer. cancer, stroke. Yes, heart disease, cancer and stroke. And what about Asian Americans? उनमें कौन सा disease ज्यादा prevalent है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस. यस, और उनमें भी डेथ किसकी वजह से ज्यादा है? सेम थ्री डिजीज कंडीशन, हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक. उनमें भी ये डिजीज कंडीशन की वजह से डेथ रेशियो ज्यादा है इन एशियन अमेरिकन ग्रुप्स. ओके, सो एनी डाउट टिल दिस? No, ma'am. No. Okay, so let's start with the healthcare considerations of minority group. अगर आपके सामने आपके पास कोई minority group वाला patient है, so आपको क्या ध्यान रखना है? Which healthcare considerations you have to keep in mind for minority groups? So first, culture responsiveness is critical in the effort to reduce the healthcare disparities and is a necessary ability for healthcare professionals to acquire in order to provide care for a diverse population. ये माइनॉरिटी ग्रुप्स है, इनमें डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, दो अलग, सारे लोग अलग कल्चर फॉलो करेंगे, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी इनमें. सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनका कल्चर आइडेंटिफाई करना है.
कल्चर आइडेंटिफाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग केयर दोगे, सो हेल्थ केयर डिस्पैरिटी, हेल्थ केयर डिफरेंसेस के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल ही ट्रीट करोगे, वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा एंड पेशेंट को ऐसा फील होगा कि आप उनको अलग से ट्रीट कर रहे हो। देयर इज द चांसेस ऑफ हेल्थ केयर डिस्पैरिटी। सो वो रिड्यूस करने के लिए आपको उनके कल्चर के बारे में जानना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स एंड क्वालिटी ऑफ केयर। आप पेशेंट के कल्चर के बारे में जानकर उसको अच्छे से केयर दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर डिस्पैरिटी भी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, उनके हेल्थ आउटकम्स भी इंप्रूव होंगे। जिसके लिए वो आए हैं हॉस्पिटल में, उनकी कंडीशन भी ठीक होगी, प्रोग्रेस होगा उनके हेल्थ में एंड क्वालिटी ऑफ केयर उनको मिलती रहेगी। द नर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नीड्स टू बी अवेयर ऑफ healthcare variations and risk factors for various population in order to facilitate appropriate care and access to needed healthcare services। हाँ, नर्स की और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द हेल्थ केयर पर्सनल, सबको पता होनी चाहिए कि कौन से डिजीज कंडीशन ज्यादा प्रिवेलेंट है, कौन से रिस्क फैक्टर ज्यादा है इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सो उसके अकॉर्डिंग आप उनको बता सकते हो कि उनको कौन सी केयर की जरूरत है, कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज वो ले सकते हैं, क्या उनके लिए नेसेसरी होगा टू प्रिवेंट दिस कॉमन डिजीजेस। तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन में ये डिजीज ज्यादा है, तो यू हैव टू टेल देम कि आपको ये केयर लेनी चाहिए, यहाँ से सर्विसेज लेनी चाहिए। It is important for the nurse to examine their own values to be responsive to the needs of someone from another population group. Awareness is a useful tool in caring for others. नर्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी वैल्यूज क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, इन शॉर्ट व्हाट आर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन देयर पॉपुलेशन। ये आपको पता होगा, सो आप अच्छे से केयर कर पाओगे एंड अवेयरनेस इज द यूजफुल टूल। आप अवेयर ही नहीं होगे, आपके पास पेशेंट आया, आपको पता ही नहीं चला कि पेशेंट दूसरे ग्रुप का था, दूसरे पॉपुलेशन का था, सो क्या करने का। सो अवेयरनेस इज द बेस्ट की। अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। सो आप क्वेश्चन पूछ के भी आप आंसर निकलवा सकते हो, बट यू शुड बी अवेयर। आपको पता ही ना चले कि ये दूसरी पॉपुलेशन का है, दूसरी कम्युनिटी का है, सो दैट इज ऑफ नो यूज। सो अवेयरनेस इज अ यूजफुल टूल। लैंग्वेज बैरियर इन्फ्लुएंस एक्सेस टू हेल्थ केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि हेल्थ केयर पर वो क्यों नहीं आते, हॉस्पिटल में क्यों नहीं आते, एक्सेस क्यों नहीं करते हेल्थ केयर का, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। दे आर नॉन इंग्लिश स्पीकर, उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है अदर पॉपुलेशन की, सो दैट्स व्हाई दे अवॉइड टू गो टू द हॉस्पिटल। It is important to remember that family members, this is important point. It is important to it is important to remember that family members and friends must not be asked to be an interpreter। जो हमने पढ़ा था कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उसमें से अगर कोई भी आता है, दे आर मल्टीलिंगुअलिस्टिक, फिर भी हम उनको नहीं पूछ सकते टू बिकम एन इंटरप्रीटर। तो आप किसको बोलाओगे एज ए इंटरप्रीटर? हाँ, देर इज वी मस्ट कॉल द प्रोफेशनल इंटरप्रीटर, जो हॉस्पिटल ने जिनको रखा है, जिनको हायर किया है कि वेन एवर देर इज अ नीड वो ही आएंगे। सो यू हैव टू कॉल देम। यू कैन नॉट ask family members or friends of a patient to be an interpreter for the client because of confidentiality and the potential for conflict of interest and the risk associated for relying inaccurate information। क्यों हम उन लोगों को नहीं बोल सकते बी टू बिकम एन इंटरप्रीटर? बिकॉज द फर्स्ट, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। सेकेंड, अगर उसको इंटरेस्ट ही ना हो, सो वो आपकी बात अच्छे से नहीं सुनेगा, अच्छे से इंटरप्रीट मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगा। एंड सेकेंड, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी जा सकती है, आपको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेशेंट के रिलेटिव को एज एन इंटरप्रीटर रखा एंड आई एम आस्किंग समथिंग कि पेशेंट को ऐसे पूछो कि उस पर अब्यूज हो रहा है कि नहीं। पेशेंट ने बोला कि यस अब्यूज हो रहा है, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेशेंट लैंग्वेज, बट इंटरप्रीटर ने आपको बोला कि नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू विल डू? सो देयर माइट बी चांसेस कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो। Only specified individuals as designated by the healthcare agency or hospital should be asked to interpret for the client। जो प्रोफेशनल, जो मतलब हॉस्पिटल ने जिनको पोजीशन दी है, डेजिग्नेशन दी है टू बिकम एन इंटरप्रीटर, उनको ही इंटरप्रिटेशन के लिए बुलाना है, नॉट द फैमिली मेंबर्स, नॉट फ्रेंड्स, नॉट इवन अदर नर्सेस। अंडरस्टूड? Yes, sir.
lack of access to preventive care needs to be addressed. Lack of routine healthcare and delay in seeking healthcare for illnesses are common. उनको प्रिवेंटिव केयर वो क्यों नहीं करते, लाइक व्हाई दे आर लैकिंग इन प्रिवेंटिव केयर, सो वो भी हमें एड्रेस करनी होगी कि क्यों ऐसा है। वो डिले करते हैं हेल्थ केयर में और फिर रूटीन हेल्थ केयर चेकअप नहीं कराते, तो ये बहुत ही कॉमन है। सो वो भी आपको एड्रेस करना है कि क्यों ऐसा है उन लोगों में जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप पॉपुलेशन है। एक तो वो पहले रूटीन हेल्थ केयर के लिए आप बुलाओगे, फॉलोअप के लिए बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं। फिर आपने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल 5th डेट को आपका फॉलोअप है, सो दे विल कम, दे विल से कि आई वाज नॉट एबल टू कम एट 5th एंड वो डिले करेंगे। सो ये बहुत ही कॉमन है ये माइनॉरिटी ग्रुप में। सो क्यों ऐसा हो रहा है, यू हैव टू एड्रेस दिस एंड यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स। अगर पॉसिबल हो सके तो ये अवॉइड करना है। Some important educational health topics includes diet and meal planning, exercise and some other lifestyle practices that help prevent disease including infectious and communicable disease. हाँ, आपको उनको health education देना होगा related to diet, meal planning, because जो population है, for example आपको exam में question पूछा है कि which type of health education is better to give Hispanic अमेरिकन और लेटिंग्स जो आपको है, सो आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज कंडीशन इन लोगों में ज्यादा प्रिवेलेंट है। सो ऑप्शंस में कौन सा सूट हो रहा है उनके डिजीज अकॉर्डिंग, तो वैसे आपको डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उनमें जो प्रिवेलेंट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्थ एजुकेशनल टॉपिक्स हो गए, इसमें सारी कम्युनिटीज का मिक्स करके दिया है, लाइक डाइट, मील प्लानिंग, एक्सरसाइज, अदर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस टू prevent the disease including infectious disease and communicable disease. Written explanation and demonstration, that is the teach back method, are of particular importance to ensure safety and mutual understanding. आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी हेल्थ एजुकेशन दिया है पेशेंट को वो पेशेंट ने समझ लिया? ओनली थ्रू टीच बैक मेथड। यस, आपको पेशेंट को बोलना है कि रिटर्न एक्सप्लेनेशन करो या फिर आपने कुछ डेमोस्ट्रेट करके बताया कि ये ऐसे करना है, सो पेशेंट को बोलना है कि रिटर्न डेमोस्ट्रेट करो, मुझे फिर से करके दिखाओ या फिर मुझे फिर से समझाओ। सो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि दो आपने जो समझा है पेशेंट वो ही समझा है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है एंड सेफ्टी भी इंश्योर होगी। अंडरस्टूड अबाउट दिस? Yes, ma'am. So till now we have completed one population, that is the minority group. उसमें हमने different types of minority group देखे और उसमें कौन से health care considerations हमें ध्यान में रखने हैं वो देखा। Then we will study different types of all the groups. Homeless है, immigrants है, refugees है, हम सारे देखेंगे। So next group is LGBTQ group, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual individuals, commonly referred as, उनका short form है LGBTQIA और LGBTQ+। दोनों अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा लिख कर आता है कि LGBTQ और सिर्फ प्लस है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही ग्रुप है, और LGBTQIA ऐसा भी लिखा हो तो भी यही ग्रुप है। दिस ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ वराइन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों हमने इतने सारे नाम दिए? बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट कि इस ये जो कम्युनिटी है उसमें बहुत टाइप के वराइन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आते हैं, लाइक लेस्बियंस अलग होगी, गे अलग होंगे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दैट्स व्हाई उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है कि दिस इज द कम्युनिटी, अलग ही कम्युनिटी उनकी बना दी है। There is often a lack of awareness and understanding among the healthcare professionals in managing the healthcare needs of this population. Yes, sometimes क्या होता है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स, उन्हें ही पता नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर कि स्पेसिफिक टाइप की पॉपुलेशन LGBTQ ग्रुप में भी ये अलग अलग है, लाइक लेस्बियन, गे, सो उनको कैसे ट्रीट करें। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट आर लेस्बियंस, व्हाट आर गे, व्हाट आर बाइसेक्सुअल, दे आर नॉट अवेयर। सो इट इज अवर ड्यूटी कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज देयर जेंडर ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर दैट मीट्स देयर नीड्स इन क्रिटिकल। यस, हमें वो पता होना चाहिए और हमें अकॉर्डिंग टू दैट केयर देनी है। Some LGBTQIA persons may be less likely to access healthcare than other population groups due to fear of stigmatization and being viewed as different. LGBTQ ग्रुप वाले लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं आते? Why they are avoiding the access to healthcare system?
बिकॉज उनको क्या फियर रहता है, दो फियर होते हैं. फर्स्ट तो फियर ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा मीन्स, हाँ, वी नो कि देर इज अ डिफरेंट स्टिग्मा. सब लोगों के दिमाग में ये लोग, ये जो कम्युनिटी है उसके लिए अलग एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्रिएट किया है. सो ड्यू टू दैट स्टिग्मा दे अवॉइड टू गो टू हॉस्पिटल. एंड उनको ये स्टिग्मा है कि सब लोग मुझे अलग से देख रहे हैं, लाइक एवरीवन इज व्यूइंग मी एज अ डिफरेंट. हम लाइक वी आर एलियंस, ऐसे सब लोग उनके साथ बिहेव करते हैं. तो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट कमिंग टू द हॉस्पिटल्स. Transgender individuals may be less likely than other groups to have certain screenings completed. जो transgender जो होते हैं, like they have both the genders, both the characteristics in themselves. So transgender individuals होते हैं, उनमें certain screenings complete करनी होती है कंपेयर टू अदर ग्रुप्स. जो दूसरे ग्रुप वाले होंगे उसके अलावा ट्रांसजेंडर में आपको स्क्रीनिंग थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लाइक मेमोग्राम्स, ब्रेस्ट एग्जाम्स, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, टेस्टिक्यूलर एग्जाम्स एंड प्रोस्टेट स्क्रीनिंग. ये सारे स्क्रीनिंग उसमें करने होंगे. फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर इज अ लिंक कि क्या आप कर सकते हो. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर ऑफ कंसर्न इन दिस पॉपुलेशन. यस, जब भी आपको एलजीबीटीक्यू ग्रुप दिया गया हो, सो फर्स्ट आपको क्या कंसर्न सोचनी है, इसमें कौन से प्रॉब्लम ज्यादा है. एसटीआई के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है इन एलजीबीटीक्यू ग्रुप. सो जब भी आपको लाइक एलजीबीटीक्यू ग्रुप हो, सो यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ, एसटीआई के बारे में तो आपको पहले ही सोचना है ये ग्रुप में. Breast cancer and cervical cancer are a concern, probably as a result of decreased screening and nulliparity. Yes, उन लोगों में एक तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के भी रेट ज्यादा देखने को मिलते हैं. क्यों? बिकॉज वो स्क्रीनिंग नहीं करवाते फ्रीक्वेंटली. एंड बिकॉज ऑफ नलीपैरिटी. व्हाट इज नलीपैरिटी? Never been pregnant. यस, दे हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट. उन्होंने जेंडर चेंज करवाया है या फिर ड्यू टू देयर ट्रांसजेंडर वो प्रेग्नेंट ही नहीं होते. सो बिकॉज ऑफ नलीपैरिटी देयर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. डिप्रेशन एंड सुसाइड आर ऑल्सो कंसर्न. उनमें डिप्रेशन एंड सुसाइड भी देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर लाइक वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं. सब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. बिकॉज ऑफ दैट इट इज सीन इन दैट दिस ग्रुप. रिजेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स, family members and social support system may be a stressor. Teenage members of LGBTQIA population are more likely to be threatened, bullied, injured, raped and victimized. Yes, एक तो पहले तो जो ये पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी के ग्रुप है, उनमें तो फ्रेंड्स भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स भी उनके रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें कोई सोशल सपोर्ट भी नहीं मिलता और उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है. दिस इज अ स्ट्रेसर. वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं. उसमें भी अगर एलजीबीटीक्यू ग्रुप के टीनेज मेंबर्स हो, वो टीन पीरियड में हो, तो उनमें एक तो लोग उनको डराएंगे, थ्रेटन करेंगे, उनको बुली करेंगे, मारेंगे, लाइक इंजरी, रेप, विक्टिमाइज, सब कुछ उन पर होता है. सो दे हैव टू सफर ऑल दिस थिंग्स. फॉर दिस रीजन स्कूल एब्सेंटिज्म कैन बी अ प्रॉब्लम. यस, आपने देखा होगा कि अगर कोई चाइल्ड है जिसको अर्ली एज में पता चलता है कि दिस इज ही और शी बिलोंग्स टू एलजीबीटीक्यू ग्रुप, सो ये सब रीजंस की वजह से, लाइक बुलिंग और इंजरी के मारने की वजह से, देयर इज अ मोर स्कूल एब्सेंटिज्म इन दिस ग्रुप. LGBTQIA youth are at risk for abuse by family members due to their sexual orientation. Yes, ये जो LGBTQ ग्रुप वाले पीपल है, जो यूथ है, जो टीन एज में है, उनका अब्यूज होता है. फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज फैमिली मेंबर्स वाले ही उनका करते हैं. जब उन्हें पता चलता है कि देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, सो फैमिली मेंबर्स वाले ही, फैमिली घर के ही लोग उनको अब्यूज करेंगे, मारेंगे या फिर इमोशनल अब्यूज करेंगे. Many same-sex couples desire children. There may be some barriers to child rearing, such as the expenses associated with adoption, artificial insemination, and surrogacy. Yes, सेम सेक्स वाले कपल्स होते हैं, दे डिजायर टू हैव चिल्ड्रन. उनको भी ऐसा होता है कि वी वांट चाइल्ड, बट देयर आर बैरियर्स. उन्हें चाइल्ड इजीली नहीं मिलेगा बिकॉज एडॉप्शन इज ऑल्सो डिफिकल्ट. एक्सपेंसेस कैसे वो करेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ता है. दे कैन नॉट गिव बर्थ. सेम सेक्स वाले हैं, सेम जेंडर वाले हैं, सो वो तो बर्थ नहीं दे पाएंगे. सो उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, लाइक सरोगेसी करके, वैसे करके ही वो चाइल्ड ले सकते हैं. But these are very expensive treatments. So sometimes it comes as a barrier. वो child तो desire करता है, but
हो नहीं पाता, वो कर नहीं सकते ड्यू टू दिस रीजंस. द रेड important point is members of LGBTQIA population are less likely to have family members who can assist them with elder or disability care. Yes, ये जो लोग पीपल होते हैं LGBTQI ग्रुप वाले पीपल, उनके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते. वो एक तो आइसोलेट हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स उनको छोड़ देते हैं. सो जब वो एल्डर हो जाते हैं, जब वो लाइक बुढ़ापे में चले जाते हैं या फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनकी केयर करने के लिए कोई होता ही नहीं है. देर इज नो वन, बिकॉज फैमिली मेंबर्स ने तो उन्हें छोड़ दिया है, उनके कोई चाइल्ड नहीं है, कोई नहीं है. सो दे आर अलोन व्हाइल दे आर एल्डर एंड व्हेन दे आर डिसेबल्ड. केयर करने के लिए कोई होता नहीं है. एडिशनली दूसरा क्या प्रॉब्लम है इन लोगों में, certain benefits such as spousal death benefits may be unavailable to them, which could impact their ability to manage finances and healthcare expenses. हमें पता है कि there is a rule कि अगर spouse में से husband या wife किसी की भी death हो जाए, so government provides certain amount to the spouse. जो भी उसका पार्टनर है उसे थोड़ा फंड मिलता रहे कि उसका एक्सपेंसेस और वो सब निकल सके. बट ये जो लोग है LGBTQ ग्रुप है, उनमें ये बेनिफिट्स नहीं देते हैं. अगर सेम सेक्स कोई भी है, मतलब दो भी पार्टनर है, उसमें से किसी एक की डेथ हो गई है, तो दूसरा जो पार्टनर है उसको कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे. सो उसकी वजह से वो अपने फाइनेंसेस भी मैनेज नहीं कर पाते, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी वो मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द प्रॉब्लम इन LGBTQIA ग्रुप. Understood about this? What is Yes, ma'am. LGBTQ group and what are the problems? Now, which healthcare considerations you have to keep in mind while caring for LGBTQ population? So, healthcare professional needs to create a welcoming, non-judgmental environment when caring for this population. जो भी healthcare professionals है, persons है, like PSCP nurse, जो भी है, उनको कैसा environment create करना है? Welcoming environment create करना है. though they belongs to this population, हमें एक वेलकमिंग जेस्चर देना है एंड नॉन जजमेंटल होके हमें एक उनको केयर देनी है. यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ रैपोर्ट. यस, आपको करेक्ट प्रोनाउन यूज करना होगा. अगर वो ट्रांसजेंडर है, उसने जेंडर चेंज करवाया है, सो यू हैव टू आस्क की हाउ शुड आई कॉल यू. हमने जो क्वेश्चंस देखे थे नर्सिंग असेसमेंट में, कि आप पहले से ही पूछते हो कि वेदर आई हैव टू टेल यू ही शी, और क्या बोलूं मैं. सो करेक्ट प्रोनाउन यूज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड मेंटेन अ रैपोर्ट. कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए अच्छे से प्रोनाउंस, आप उसको आप अच्छे से बुलाओगे तो ही वो आपसे बात करेगा. पेशेंट measures such as altering the signage on paperwork and document asking for gender identification will better serve the health needs of this population. Yes, अच्छा, आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप लाइक साइन करवाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, तो देर इज रिटन कि व्हाट इज योर जेंडर. सो उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, उससे आपको अच्छा लगेगा. लाइक पेशेंट साइन करेगा, फिर जेंडर में लिखेगा कि वो क्या है, स्पेसिफिक वो मेंशन करेगा, वेदर दे आर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर. तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन है, ये स्पेसिफिक इस ग्रुप का है, और मुझे कैसे केयर करनी है इस पेशेंट की. In addition, the healthcare facility must develop institutional policies inclusive of all gender identities and preference. Yes, हॉस्पिटल में भी कैसा होना चाहिए रूल, सारे फॉर्म्स में ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मेल एंड फीमेल दो ही ऑप्शन हो. दे शुड डेवलप लाइक सारे पेपर्स और पॉलिसीज में अदर जेंडर्स आइडेंटिटीज भी उनको डालनी चाहिए, प्रेफरेंसेस अंदर डालने चाहिए, सो वो लोग अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकें, नॉट ओनली मेल एंड फीमेल. Some measures will allow care providers to treat the client according to their identity, while also maintaining an understanding of their risk factors based on the biological drivers of health. अगर आपको पता चलेगा कि पेशेंट कौन से कम्युनिटी का है, LGBTQ तो है पर उसमें भी कौन से टाइप का है, सो उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को कौन से रिस्क फैक्टर ज्यादा है. अगर पेशेंट ने सर्जरी करवाई है, फॉर एग्जांपल मेल टू फीमेल में ट्रांसफर हुआ है पेशेंट, सो उसने डेवलप किए अदर ऑर्गन्स फीमेल जैसे, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ड्यू टू सर्जरी, उसके भी रिस्क है. एंड वो पहले मेल था, सो प्रोस्टेट मेल वाले डिसऑर्डर्स भी उनमें रिस्क ज्यादा है. सो जो बायोलॉजिकल उसकी जो बॉडी थी उसके अकॉर्डिंग भी रिस्क है, कौन सी रिस्क फैक्टर्स है, एंड नाउ उसने चेंज करवा के भी अपना जो डेवलप किया है उसके भी रिस्क फैक्टर्स क्या है. सो दोनों आपको पता चलेगा, पर ये कब पता चलेगा? हाँ, व्हेन यू नो कि पेशेंट कौन से
कौन सी उसकी जेंडर ओरिएंटेशन क्या है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, वो जब आप जानोगे तभी आपको पता चलेगा। Health promotion measures needs to focus on screening for health concerns such as cancer, STI, depression and suicide, and on educating on safe sex practices. आपको हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन किस पर ज्यादा देना होगा? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। कौन से कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज ऑफ देयर नॉली पैरिटी, और वो जो जेंडर चेंज करवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, उसकी वजह से। एसटीआई उसमें कॉमन है, डिप्रेशन, सुसाइड भी उनमें बहुत कॉमन है। सो आपको ये सब इस टॉपिक्स पर आपको हेल्थ प्रमोशन करनी है, हेल्थ एजुकेशन देना है, एंड यू हैव टू आल्सो एजुकेट ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस. A careful sexual history and appropriate counseling are important for all members of LGBTQIA population. Yes. जब आप LGBTQIA population का असेसमेंट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर सेक्सुअल हिस्ट्री उनकी लेनी है, प्रॉपर काउंसलिंग भी करना है, सारे ग्रुप, सारे मेंबर्स का, सारे जो भी मेंबर्स है LGBTQ ग्रुप के, सारे लोगों का करना है. नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज NPEP, or the use of prophylactic antiretroviral before and after potential HIV exposures needs to be considered. नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या होगा? एक तो HIV दो रीजन से स्प्रेड होता है, ऑक्यूपेशनल एंड नॉन ऑक्यूपेशनल. हम कौन से ग्रुप में आएंगे? बीइंग अ नर्स, Occupational. Non-occupational. व्हाई नॉन ऑक्यूपेशनल एंड ऑक्यूपेशनल? क्यों? व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज दिस नॉन ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल क्या है? व्हाट इज ऑक्यूपेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, सो ऑक्यूपेशनल रिस्क किसको ज्यादा होगा? सो वी नर्सेस फर्म्स अंडर ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर. हम पेशेंट, अगर हमारा पेशेंट HIV है, हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है, कुछ भी रीजन हुआ, सो हमें ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर रिस्क ज्यादा है, ऑक्यूपेशन से हमारा एक्सपोजर ज्यादा है. नॉन ऑक्यूपेशनल मीन्स ये जो पर्सन है उनमें कोई रिस्क नहीं है, दे आर नॉट डूइंग अ वर्क. ऑक्यूपेशनल में दो टाइप के लोग आते हैं, फर्स्ट तो हेल्थ केयर वर्कर्स, और दूसरे जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, उनका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन की वजह से उनको HIV ज्यादा होता है. सो दिस आर द टू ग्रुप्स और कैटेगरीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड जो प्रोस्टिट्यूट्स है, उनको उनके ऑक्यूपेशन की वजह से HIV होता है. एंड जो अदर लोग हैं उनका ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, बट ड्यू टू लाइक अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस और पार्टनर की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से उनको होता है. सो इनमें नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना है. दे आर नॉट डूइंग एन ऑक्यूपेशन, उनका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है कि HIV से वो एक्सपोज होंगे. दे आर नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बिकॉज ये LGBTQ ग्रुप के हैं, सो देयर माइट बी चांसेस दैट दे आर नॉट फॉलोइंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, और उसकी वजह से HIV हो सकता है. सो हमें पहले से ही प्रोफाइलेक्सिस, लाइक वैक्सीन्स के बारे में उनको समझाना है, प्रोफाइलेक्सिस के बारे में, प्रोफाइलेक्टिक एंटी रेट्रोवायरल जो वैक्सीन्स होती है इम्यूनिटी, वो हमें देना है. कौन से लोगों को? जिनको HIV का एक्सपोजर ज्यादा है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. यस और नो? हाँ. Transgender persons taking hormone therapy needs to be monitored at regular intervals. जो भी ट्रांसजेंडर है वो लोग अपने सेल्फ को ट्रांसफर करने के लिए हार्मोनल थेरेपी लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल है उसको फीमेल में ट्रांसफर होना है, सो दे विल टेक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कि उनकी बियर्ड ग्रोथ कम हो जाए एंड धीरे धीरे फीमेल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो. अगर फीमेल को मेल में ट्रांसफर होना है तो दे विल टेक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कि उनकी बियर्ड ग्रोथ स्टार्ट हो और जस्ट लाइक वो मेल्स जैसे डेवलप हो जाए. सो ट्रांसजेंडर लोग हार्मोन थेरेपी ज्यादा करते हैं, सो उनको भी रेगुलर मॉनिटर करना है. व्हाई? बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन सच एज polycythemia occurring with exogenous testosterone use needs to be detected and treated early. अगर कोई ट्रांसजेंडर पेशेंट ऐसा है कि जो बहुत एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ले रहा है, सो उसकी वजह से पोलीसाइथेमिया ज्यादा हो सकता है. व्हाट इज पोलीसाइथेमिया? RBC વધારે increase થઈ જાય. Yes.
इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सो आपको पहले से ही अर्ली डिटेक्शन करना है एंड यू कैन ट्रीट दिस अर्ली। सो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल की गे है। सो अपने जेंडर ओरिएंटेशन से आपको पता चल गया कि ये पर्सन ट्रांसजेंडर है। देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो हार्मोनल थेरेपी ले रहा है या नहीं, बिकॉज हार्मोनल थेरेपी वाले जो है उनको रेगुलर आपको मॉनिटर करना होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। देन ट्रांसजेंडर पर्संस हु हैव अंडरगॉन सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी, जो अपनी सर्जरी करवा कर ट्रांसफर होते हैं, नीड टू हैव रिस्पेक्टिव प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, उनका भी प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैव अंडरगॉन मेल टू फीमेल रीअसाइनमेंट मीन्स, हाँ, person was born as a male but now the person has undergone a surgery to become a female. So जिसने मेल टू फीमेल रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है उसको कौन सी स्क्रीनिंग करनी होगी? ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी होगी बाय द वे ऑफ मैमोग्राफी इफ दे आर ओल्डर देन 50 years। वो मेल था बट उसने अभी फीमेल वो पर्सन बना है, उसने सर्जरी करवाई है। सो वो मेल था इसलिए आप ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग नहीं करोगे। इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ दे हैव बिकम अ फीमेल, तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क है। सो आपको ब्रेस्ट कैंसर का भी स्क्रीनिंग करना होगा रेगुलरली। उनको भी बोलना होगा कि बीएसई, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करना है। एडिशनली फीमेल टू मेल है, फीमेल टू मेल मीन्स, हाँ, they were born as a female but now they have undergone a surgery to become a male. So female to male individuals still undergo the mammography। फीमेल टू मेल में सर्जरी करवाई है उनको भी मैमोग्राफी करनी है। क्यों? हाँ, बायोलॉजिकली तो दे वर फीमेल। हाँ, सो अगर मेल टू फीमेल में है तो उनमें भी प्रोस्टेट रिलेटेड आपको केयर करनी है, भले वो अभी फीमेल बन गया है। एंड फीमेल टू मेल बने हैं तो उसमें भी प्रोस्टेट देखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, दोनों में जिसने भी सर्जरी करवाई है, जो भी वो बायोलॉजिकली पहले थे एंड नाउ आफ्टर सर्जरी जो भी है, आपको दोनों स्क्रीनिंग दोनों ट्रांसजेंडर टाइप्स में करनी है। सो जो फीमेल से मेल में जाते हैं उनको भी मेमोग्राफी करनी है। क्यों? ड्यू टू द रिस्क ऑफ रेसिड्यूअल ब्रेस्ट टिश्यू टू डेवलप अ कैंसर ग्रोथ। मेल बनने के लिए सारे ब्रेस्ट टिश्यूज डॉक्टर रिमूव कर देंगे बट चांसेस है कि कोई ब्रेस्ट टिश्यू अंदर रह गया है, सो धीरे धीरे मे बी वो ट्यूमर में डेवलप हो सकता है। सो दैट्स वाई दो दे डोंट हैव ब्रेस्ट इश्यूज बट उनको भी ब्रेस्ट मैमोग्राफी करके आइडेंटिफाई करना है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अंडरस्टूड? Yes. ओके। नेक्स्ट ग्रुप इज होमलेस ग्रुप। होमलेस मीन्स जिनके पास घर नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं, दैट पर्सन्स affects any person from all background। it is not like that कि हाँ ये है तो होमलेस नहीं हो सकता, किसी को भी होमलेसनेस हो सकती है, वेदर कोई भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, होमलेस कोई भी हो सकता है। एंड फैमिली यूनिट्स कैन बी अफेक्टेड एज अ होल। समटाइम्स एक होमलेस होता या फिर पूरी की पूरी फैमिली भी होमलेस हो सकती है। there is a risk for early death related to health problems। let's see box 5.4 for the common health problems in homeless। होमलेस जो लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, जो बाहर रहते हैं, उनमें अर्ली डेथ बहुत ज्यादा हो जाती है, वो जल्दी मर जाते हैं। क्यों? तो बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स। और कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स उन लोगों में कॉमन है? सो लेट्स सी बॉक्स 5.4। क्या लिंक है होमलेसनेस में और हेल्थ प्रॉब्लम्स में? क्या लिंक है? सो फर्स्ट तो द लिंक बिटवीन होमलेस एंड हेल्थ। उनकी हेल्थ क्यों खराब होती है जस्ट बिकॉज ऑफ होमलेस? तो फर्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनके पास घर बार कुछ नहीं है, हेल्थ केयर भी वो अच्छे से नहीं लेते, हॉस्पिटल नहीं जाते। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम्स गेटिंग इनफ फूड, खाना भी उनको अच्छे से नहीं मिलता, इनफ फूड भी नहीं मिलता डेली बेसिस पर। डिफिकल्टी इन स्टेइंग सेफ, वो होमलेस है, कहीं पे भी फुटपाथ पर कहीं पे भी सो रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं। सो दे आर नॉट सेफ इन द आउटसाइड एनवायरमेंट। वायलेंस होता है उनके साथ। स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर बिकॉज उनको ऐसा स्ट्रेस होगा कि कब कुछ यहाँ से हो निकले यहाँ से। अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस, वो जहां पर रहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट हाइजीनिक, एकदम अनसैनिटरी प्लेसेस है। एंड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम इन वेदर्स। यस, एंग्लिक्स कंट्रीज में आपको पता होगा कि कोल्ड होता है तो देर इज अ सीवियर कोल्ड, बहुत ठंड होती है। सो वो ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट होके, ठंड की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज द रीजन कि होमलेस पर्सन को हेल्थ क्यों अफेक्ट होती है, किसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब होती है, और कौन से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट इज डेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे डू नॉट ब्रश रेगुलरली।
डेंटल प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा देखने को मिलेंगे। माल न्यूट्रिशन, इसमें माल न्यूट्रिशन क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू Because of पोवर्टी। poverty. हाँ, पोवर्टी, खाना नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। और जो हेल्दी पीपल है वो अच्छे से खाना नहीं खाते, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग पुअर न्यूट्रिशन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग HIV, एड्स, लंग डिजीजेस including bronchitis, TB, pneumonia. These are the common problems in homeless people. Infectious and communicable diseases are also very common. Mental health problems उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स भी होमलेस में ज्यादा होते हैं। एंड वुंड्स एंड स्किन इन्फेक्शन, उनको स्किन भी ऐसे खुले में कहीं पे भी सो रहे हैं, घूम रहे हैं, सो वुंड्स भी ज्यादा होंगे, स्किन इन्फेक्शन भी ज्यादा होगा। सो दिस आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन होमलेस पीपल। Now, there is a disability often results from illness and becomes a barrier to employment, which further augments the problem of homelessness. एक तो वो होमलेस है, ऑलरेडी होमलेस है, और उनको कुछ बीमारी हो गई है। एक तो वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी। उसकी वजह से वो अब कंप्लीटली डिसेबल्ड हो गए। डिसेबिलिटी की वजह से उनको अभी काम भी नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं होमलेस, वो कुछ भी ऑड वर्क करते हैं इन इंडिया। आपने देखा होगा कि जो भी ऑड वर्क उनको मिलेगा वो करने जाएंगे। पर एक तो इलनेस की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं गए, उसकी वजह से कंप्लीटली डिसेबल हो गए। सो अब उनको काम पर कौन रखेगा? सो ड्यू टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उनकी जॉब मिलने में एक बैरियर हो जाएगा। उसकी वजह से फर्दर वो प्रॉब्लम होमलेसनेस का है वो और बढ़ जाएगा। Infants affected by homelessness often have low birth weights and are more likely to die within first 12 months of life than infants in other population group. ये जो होमलेस पीपल होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं, होमलेसनेस की वजह से एक तो वो बॉर्न होते हैं तो LBW वाले होते हैं, बिकॉज मदर ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छे से फूड खाया ही नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। तो जब बेबी बॉर्न होगा सो वो LBW वाला होगा, और उसकी वजह से फर्स्ट 12 मंथ्स में, एक ही साल में बच्चे की डेथ हो जाती है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन ग्रुप्स। इन लोगों में इन्फेंट डेथ की रेशियो ज्यादा है ड्यू टू LBW। Children affected by homelessness are sick more often with the illnesses such as asthma, iron deficiency, lead poisoning, ear infection, GI illness, and behavioral and mental health problems. होमलेस जो पीपल है, होमलेस पूरी कम्युनिटी जिनके पास घर नहीं है, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू होमलेस? तो वो बार बार सिक हो जाएंगे। देन उनमें एज्मा भी ज्यादा देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी भी ज्यादा हो सकती है, लीड पॉइजनिंग हो सकता है, ईयर इन्फेक्शंस, बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग हाइजीन एट ऑल। GI इलनेस होगी, बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। चिल्ड्रन मे बिगिन टू एक्ट out or become less attentive in the classroom when basic needs are not met. ये जो होमलेस पीपल होते हैं, अगर वो स्कूल में जाएंगे, जो चाइल्ड है जो स्कूल में जाता है, तो क्लासरूम में भी वो अटेंटिव नहीं रहेगा, बिकॉज उसकी जो बेसिक नीड है वो ही फुलफिल नहीं हो रही। उसे खाना नहीं मिल रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो ही फुलफिल नहीं हो रही, सो क्लास में भी वो इनअटेंटिव ही रहेगा। Youth experiences health problems related to risk-taking behavior such as alcohol and drug abuse, and depression and suicides are concerns. आपने देखा होगा कि ये जो लोग होमलेस पीपल होते हैं तो रास्ते पर कहीं पे भी ऐसे अल्कोहल कंज्यूम करके, ड्रग्स कंज्यूम करके वो लोग पड़े रहते हैं। सो जो यूथ है, जो टीन एज एडोलेसेंट ग्रुप में है जो लोग होमलेस पीपल, सो वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करना, अल्कोहल अब्यूज करना, ड्रग अब्यूज करना, डिप्रेशन, सुसाइड, वो लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर आल्सो कंसर्न बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो ये जब ये सारी जो बैड थिंग्स है वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज देखने को मिल जाएगी फीमेल्स में, STIs कॉमन है बहुत। Physical and sexual abuse are also a concern in homeless adults. यूथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगा। Okay, let's take a short break. Then after that we will consider कि what are the healthcare consideration for homeless people. जो homeless है, जिनके पास घर नहीं है, बाहर फुटपाथ पर रहते, तो उनमें क्या considerations हमें ध्यान में रखनी है।
Okay, so let's start with the healthcare considerations for the homeless people. So let's see the clinical judgment box first. A client who is homeless come to the healthcare clinic for treatment of a painful open foot wound. सिचुएशन ऐसी है कि एक क्लाइंट है जो होमलेस है, वो आपके पास आया है हेल्थ केयर क्लिनिक में। किसके लिए आया है, क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए? तो उसको ओपन फुट वुंड हुआ है, उसके पेनफुल ओपन फुट वुंड के लिए आपके पास आया है। प्रायोरिटी क्लाइंट नीड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। आपको कैसे प्रायोरिटाइज करनी है क्लाइंट की नीड? सो फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द रिपोर्टेड सिम्टम्स फर्स्ट। सो प्रोवाइड मेजर्स फॉर पेन रिलीफ। उसको बहुत पेन हो रहा है, सो फर्स्ट उसको पेन रिलीफ के लिए कुछ करो। पेन हो रहा है, सो पहले एनाल्जेसिक्स दो। देन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ओपन फुट वुंड। पहले ही आप बात करने बैठ जाओगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सो द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन मोर। सो पहले आपने उसको पेन रिलीव करने का मेजर पहले दे दिया, देन आप उसको कॉज आइडेंटिफाई करोगे कि ओपन फुट वुंड हुआ कैसे है। असेस एंड ट्रीट द ओपन फुट वुंड। नाउ आपने पूरा असेसमेंट किया कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं, देन you will start the treatment according to the assessment. Provide care with a non-judgmental and non-threatening approach. Make sure कि आप उसको non-judgmental way में आप care दोगे. You don't have to judge that client. Non-threatening way में आपको उसको डराना नहीं है, ऐसे आपको care देनी है. Determine medical history and existing health problems. Now उसकी आपको medical history भी लेनी है. कुछ और प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज वो पेशेंट हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है, होमलेस है, ये पहली बार आया है। सो कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है कि नहीं उसमें, ये आपको डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रोवाइड अवेलेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज। अब वो रेगुलर ट्रीटमेंट, वो ड्रेसिंग कहाँ से करेगा, जो भी उसको हेल्थ केयर रिसोर्सेज का एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। आप कोई सोशल वर्कर का उसको कांटेक्ट करवा के दोगे या फिर कोई एनजीओ की जहां पर वो जाके कर सकता है। एस्टेब्लिश एन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन इफ अवेलेबल। शायद कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो कौन से पर्सन को कांटेक्ट करना है उसको, सो वो आपको एस्टेब्लिश करके देना है, एक इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन। एंड एस्टेब्लिश अ फॉलो अप प्लान ऑफ केयर। फॉलो अप भी उसका एस्टेब्लिश करना होगा कि आफ्टर 1 वीक या 2-3 डेज कब आपको वापस दिखाने के लिए आना है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रोवाइड केयर टू अ होमलेस पर्सन। So let's start with the theory. Identification of those who are homeless needs to be accomplished through avenues such as outreach programs. कौन से लोग होमलेस है वो कैसे आपको पता चलेगा? सो आउटरीच प्रोग्राम्स मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, सर्वे जो होता है, जो हमारा सेंसस होता है एवरी 10 years, सो ऐसे सर्वे से, आउटरीच प्रोग्राम से पता चलेगा कि कितने लोग होमलेस है, कितने को पास होम है। सो उससे ही आपको पता चलेगा कि ये लोग होमलेस है, इनके पास घर नहीं है। The initial healthcare visit and every visit thereafter need to be done with a non-judgmental and non-threatening approach. आपको पता चल गया है कि ये होमलेस है, तो फर्स्ट टाइम इनिशियल हेल्थ केयर विजिट, पहली बार जो आता है, और उसके बाद हर बार जब भी पेशेंट आए आपको कैसे ट्रीटमेंट देनी है, इन अ नॉन जजमेंटल नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच में। द नर्स नीड्स टू फोकस ऑन रिपोर्टेड सिम्टम फर्स्ट। दिस विल एनकरेज द एडहेरेंस एंड फॉलो अप। उसका जो रिपोर्टेड सिम्टम है, पेशेंट आपके पास लेके आया कि मुझे कान में दर्द हो रहा है, तो पहले वो चेक करो, फिर आप दूसरा असेसमेंट करने बैठ गए पेशेंट का, दैट इज नॉट गुड थिंग। जो उसका रिपोर्टेड सिम्टम है उस पर पहले फोकस करना है। उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टिक रहेगा फॉलो अप में और आपके पास फिर से भी आएगा पेशेंट। सब्सिक्वेंट केयर शुड इंक्लूड हेल्थ मेंटेनेंस, attention to common problems and concerns, and establishing an emergency contact person if available. जो हमने ये बॉक्स में पढ़ा वही सब फिर से लिखा है कि पहले तो कैसे आपको उसकी हेल्थ मेंटेन करनी है, कैसे सब्सिक्वेंट केयर मींस कंटिन्यूअस केयर कैसे दोगे कि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, अच्छी रहे। फिर जो उनके कॉमन प्रॉब्लम्स है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि होमलेस पीपल होते हैं, इन लोगों में ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, सो उन पर अटेंशन देना है कि हाँ ये लोग में ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज का रिस्क ज्यादा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर द पर्सन, अगर कोई यूथ है सो ये तो नहीं कर रहा है, कोई चाइल्ड है तो उसको कोई बिहेवियरल लाइक टेम्पर टेंट्रम्स जैसे होते हैं बिहेवियर, सो ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं है। सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू प्रोवाइड अटेंशन टू दैट कॉमन प्रॉब्लम्स एंड एस्टेब्लिश एन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन इफ अवेलेबल, कि कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो किस लोगों को, कौन से लोग को पहले कांटेक्ट करें। यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट पर्सन। मेंबर्स ऑफ होमलेस पॉपुलेशन,
may not added to medical treatment recommendations and therefore require close follow up as much as possible. ये जो होमलेस पीपल होते हैं वो एक बार हॉस्पिटल में आएंगे, फिर आप बोलोगे कि एक हफ्ते बाद मुझे फिर से दिखाने आना है, सो दे विल नॉट कम टू द हॉस्पिटल. Majority of the time they will not stick, they will not adhere to the medical treatment. जो भी आप recommendations बोलते हो, for example आपने ट्रीटमेंट दी, फिर आपने बोला कि ये फार्मेसी स्टोर से ये मेडिसिन लेकर जाना है, जो भी आपने रेकमेंड किया वो भी नहीं करेंगे. दे विल डायरेक्टली गो टू देयर होम. होम तो है नहीं, पर जहां पर वो रहते हैं वहां पर चले जाएंगे. दे विल नॉट कम टू सीक द मेडिकल ट्रीटमेंट, रिकमेंडेशंस भी वो फॉलो नहीं करेंगे. सो इट इज आवर ड्यूटी कि आप क्लोज फॉलो अप करो कि हाँ वो पर्सन को आपने बोला था तो उसने मेडिसिन ली कि नहीं, वो पर्सन फिर से फॉलो अप करने के लिए आया कि नहीं. आपको क्लोज फॉलो अप लेना होगा उन पेशेंट्स का. दिस पॉपुलेशन टेंड्स टू हैव लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज एंड पुअर हेल्थ आउटकम्स. ये जो पेशेंट है उनका हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होता है, बिकॉज पहले तो वो जब हॉस्पिटल आएंगे तब लास्ट स्टेज में कोई भी डिजीज पहुंच गया होगा तब वो हॉस्पिटल आएंगे. सो उसकी वजह से एक तो हॉस्पिटल स्टे भी लॉन्गर होंगे और हेल्थ आउटकम्स अच्छे नहीं होंगे. बट अगर स्टार्टिंग में आए होते तो आप उनको बचा भी सकते. बट जब पूरा प्रोग्रेस, डिजीज पूरा प्रोग्रेस हो गया, लास्ट स्टेज में पहुंच गया, देन दे आर कमिंग टू सीक द मेडिकल ट्रीटमेंट. सो उसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा हो जाएगा और हेल्थ का आउटकम भी उतना अच्छा नहीं होगा. Certain medications needs to be avoided in homeless population due to the potential for abuse and because of contraindications in chronic conditions. Yes, ये पर्सन में एक तो ज्यादा रिस्क किसका है, अब्यूज वो लोग ज्यादा करते हैं. सो सर्टेन मेडिसिन जो क्रोनिक कंडीशंस है उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है. सो ये पेशेंट में आप वो मेडिसिन दोगे. अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, क्रोनिक पेन है और डॉक्टर ने बोला है कि इसको ओपियोइड्स देना है, तो दोगे आप पेशेंट को? नो, वाई? કેમ કે કોન્ટ્રાઇન્ડિક થશે તો પછી વધારે ડિટોરેટ કરશે એની હેલ્થ. नो, Risk नॉट for दैट. abuse, stop your. रिस्क फॉर अब्यूज. हाँ, वो लोग अब्यूज करेंगे. सो जो ऐसी ड्रग्स है जिस पर डिपेंडेंट हो सकता है क्लाइंट, सो ऐसी सारी ड्रग्स ये पेशेंट को नहीं देनी है बिकॉज ऑफ द रिस्क फॉर पोटेंशियल फॉर अब्यूज. वो लोग अब्यूज करेंगे इसका. द नर्स नीड्स टू एंश्योर दैट एनी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज सेफ फॉर द पर्सन. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को पता नहीं था ये होमलेस है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया. सो बीइंग अ नर्स वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो पर्सन के लिए सेफ है. अगर नहीं है सेफ तो वी हैव टू टेल टू द डॉक्टर कि ये पर्सन होमलेस है. सो डॉक्टर विल चेंज द मेडिसिन. तो इट इज अवर ड्यूटी कि वो पर्सन के लिए सेफ हो और वैसी मेडिकेशन जिसका वो अब्यूज करे वो तो देनी ही नहीं. मल्टीपल रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू इंक्रीज द हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द होमलेस पॉपुलेशन. ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्सेस नहीं है, होमलेस के लिए भी रिसोर्सेस है. देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेस, पर उनको पता नहीं है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि उनके पास भी रिसोर्सेस है. तो देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल कि जिससे वो लोग हेल्थ केयर ले सकते हैं. and the nurse needs to establish the connection for the client as appropriate. और पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि वो कितनी, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो कौन से बेनिफिट्स ले सकता है हेल्थ केयर का. सो क्या कर सकता है. सो बीइंग अ नर्स हमें वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है. हमें पेशेंट को समझाना है कि यू हैव दिस बेनिफिट्स और ये बेनिफिट्स आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से आपको ये रिसोर्सेस मिल जाएंगे. सो वो हमें पेशेंट को बताना है. देयर इज अ लिंक फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ पॉपुलेशन. एक लिंक है जिस पर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सो ले सकते हो. नेक्स्ट ग्रुप इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज. व्हाट इज दिस ग्रुप? ये ग्रुप कैसा होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेडिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, homeless are different. કોઈ Online students, benefits નહીં મળે ગવર્મેન્ટ થ્રુ એવું? yes. So एक उनको सोशली भी डिसएडवांटेजेस है, बेनिफिट्स सर्टेन एंड इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज है. सो दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. सो दिस पेशेंट जो सोशियो और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसी फैमिलीज में कौन से हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है, उनके लिए क्या हेल्थ कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखनी है. लेट्स स्टडी.
So disadvantage in a socio-economic sense can relate to poor health outcomes. डिसएडवांटेज सोशियो और इकोनॉमिक है, उनमें डिसएडवांटेज है, उसका मतलब क्या होगा कि उनके हेल्थ आउटकम्स भी पुअर होंगे, बिकॉज उनके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग. सो एजुकेशनल लेवल, इनकम, फैमिली, सोशल सपोर्ट एंड कम्युनिटी सेफ्टी आर द सोशल डिटर्मिनेंट्स that can influence the health and health outcome. Social disadvantages means उनका एजुकेशनल लेवल भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज उनके लिए कोई बेनिफिट्स ही नहीं था एजुकेशन के लिए. एजुकेशनल लेवल भी अच्छा नहीं है, इनकम भी अच्छी नहीं है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स है, सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई कम्युनिटी सेफ्टी नहीं है उनके लिए. सो उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी इन्फ्लुएंस होगी और हेल्थ आउटकम्स भी इन्फ्लुएंस होंगे. The social determinants of health are equally as important in promoting positive health outcomes as engaging in a healthy lifestyle and having access to routine quality care. ये जो सारे social determinants है, social and financial determinants are so important. अगर ये अच्छा होगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिकॉज वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएगा. हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए, दे मस्ट बी एजुकेटेड, उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए. सो हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छे से कर पाएगा अगर वो होगा तो. एक्सेस रूटीन हेल्थ केयर, क्वालिटी केयर भी वो ले पाएगा, बट ये नहीं है, सो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगे. Individuals of low socio-economic status, that is low SES, are more likely to engage in risky health behaviors. जिनके पास पैसे नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका लो है, सो वैसे लोग रिस्की हेल्थ बिहेवियर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्की हेल्थ बिहेवियर्स? रिस्की हेल्थ बिहेवियर्स मीन्स हमने अभी देखा होमलेस पीपल में, Abuse and chronic condition. drug abuse, alcohol abuse, unprotected sex. These are the risk-taking behaviors. वो लोग ऐसा कुछ भी करेंगे. Due to limited financial resources, this individual are at higher risk for chronic disease and any disease associated with primary prevention. उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसकी वजह से ये लोगों में क्रोनिक डिजीज ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज पैसे ही नहीं है. सो कुछ भी बीमारी हुई, दे आर जस्ट वेटिंग. सो वो डिजीज कंडीशन अब क्रोनिक हो जाएगी. जो डिजीज कंडीशन प्राइमरी स्टेज में प्रिवेंट हो सकती थी, but due to the lack of financial resources वो प्राइमरी स्टेज में प्रिवेंट नहीं हुई, and now it has become to the chronic disease. The health of a children can be affected later in life due to the risk factors. ये सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल होंगे, वो फैमिली में जो बच्चे पैदा होंगे उनके पास भी ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी पैसे और नहीं होगा. सो लेटर ऑन जब वो एडल्ट हो जाएंगे तब उनमें हेल्थ इश्यूज से स्टार्ट होंगे, बिकॉज बचपन से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छी हेल्थ नहीं देखी, तो वो प्रॉब्लम्स उनको लेटर ऑन अफेक्ट करेंगे. जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको अफेक्ट करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनमें तब स्टार्ट हो जाएंगे. Now, what are the health considerations for the socio-economically disadvantaged individuals and families? Social work services are helpful in connecting this population to the needed healthcare services and resources to assist in paying for healthcare. पहले तो आप सोशल वर्क सर्विसेज, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, इनके लिए डिफरेंट एनजीओस, गवर्नमेंट स्कीम्स वो सब होती है, सो दैट इज रिक्वायर्ड. ये लोगों को पे करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज के और जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो वो पे कैसे करेंगे? दे डोंट हैव इनफ मनी. सो वो पे करने के लिए आप सोशल वर्क सर्विसेज का कांटेक्ट करवा सकते हो, उनको कनेक्ट करवा सकते हो उनके साथ. The nurse needs to carefully assess the client for at-risk behaviors and intervene appropriately, including providing education. हमें आइडेंटिफाई करना है, we have to assess कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो कोई रिस्क टेकिंग बिहेवियर तो नहीं कर रहा है. इफ यू आइडेंटिफाई कि पेशेंट जो है वो रिस्क बिहेवियर्स कर रहा है, द पेशेंट इज अब्यूजिंग अल्कोहल, ड्रग एंड पेशेंट इज इन्वॉल्व्ड इन अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो यू हैव टू इंटरवेन प्रॉपर्ली. आपको हेल्थ एजुकेशन देना होगा कि दिस थिंग्स यू आर डूइंग इज हैविंग बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ. सो ये सब आपको करना पड़ेगा. द नर्स ऑल्सो नीड्स टू इनिशिएट सोशल सर्विस कॉन्टेक्ट एंड एंश्योर एडिक्वेट हेल्थ केयर. आपको सोशल सर्विसेज कॉन्टेक्ट करवाने होंगे वो पेशेंट को. पेशेंट नहीं है,
पेशेंट के पास कोई बेनिफिट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्ट फॉर द सोशल सर्विसेज। पेशेंट का और उनमें कनेक्शन करवाना है कि उनको अच्छे से हेल्थ केयर मिलती रहे। सो दैट इज ऑल अबाउट सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल। नाउ कौन से दूसरे पीपल है? सो अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड इंडिविजुअल। अनइंश्योर्ड मीन्स those who don't have any kind of insurance, yes. And under insurance means છે પણ લિમિટ અસેસ છે, નોટ ફુલ્લી yes, કવર। हाँ फुल्ली कवरेज नहीं है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के पास सिर्फ 1 लाख का और 50,000 का इंश्योरेंस हो, सो उतने में क्या कवर होगा? सो दे आर अंडर इंश्योरेंस। So individuals with low income are at most at risk for being uninsured and under insurance। वो क्यों है uninsured और under insurance क्यों है? Because उनके पास इनकम नहीं है। इंश्योरेंस के लिए उनको भी ईएमआई और इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ इनकम। सो वो क्या करेंगे? इंश्योरेंस लेंगे ही नहीं, और एल्स अगर उनकी इनकम कम है, सो अकॉर्डिंग टू देयर इनकम वो कम पैकेज वाला इंश्योरेंस बाय करेंगे। Those who are uninsured or underinsured are at increased risk for health complications due to lack of access to healthcare and likelihood that preventative care services and chronic disease management will not be sought। एक तो वो अनइंश्योर्ड है और अंडर इंश्योर्ड है, उसकी वजह से क्या होगा? हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। इनके पास पैसे नहीं थे, एक्सेस वो जा नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्रिवेंटेटिव केयर उन्होंने ली ही नहीं। कोई डिजीज, हर डिजीज प्रिवेंट किया जा सकता है इन द स्टार्टिंग पीरियड, बट वो हॉस्पिटल में ही नहीं जाएंगे, सो वो कैसे प्रिवेंट होगा? सो उसकी वजह से क्रोनिक डिजीज और वो सब हो सकते हैं, और उसको कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा हो जाएंगे। Most individuals receive health insurance coverage through an employer. In English countries, it is a rule कि आप जहां पर जो भी आपकी वर्क प्लेस है, जहां पर आप जॉब करते हो, फ्रॉम द एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से मिलता है? थ्रू देयर एम्प्लॉयर, जहां पर वो जॉब करते हैं। इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट ऑफर दिस कवरेज, द एम्प्लॉय इज एट रिस्क ऑफ बीइंग अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड। बट कोई एम्प्लॉयर जहां पर वो जॉब करते हैं, बट दे विल से कि हम ये आपका कवरेज नहीं करेंगे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सो क्या होगा? वो एम्प्लॉय तो अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योरेंस ही रहेगा। Medicaid is an option for some low income families who meet eligibility criteria। हमने ये देखे थे when we were studying ethical issue, और उसमें देखा था कि different types of there are insurance, healthcare insurance। तो उसमें हमने Medicaid देखा था। Medicaid like a government type था कि जिसकी इनकम लो है और जो एलिजिबल है, like हमारे यहाँ पे भी सम गवर्नमेंट स्कीम्स है, बट वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। जिनकी इनकम लाइक एनुअली इससे कम हो, वो ही लोग एलिजिबल होते हैं। सो देर आर सम सर्टेन क्राइटेरियाज, अगर वो क्राइटेरियाज में फिट हो जाए, दे आर एलिजिबल, तभी उनको मेडिकेड वाला इंश्योरेंस मिल सकता है जो ऑलरेडी लो इनकम वाले हैं। Commercial insurance is another option, but may still be cost prohibitive depending on the individual circumstances। There are another commercial insurance are also there। हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जैसे होती है वो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट स्कीम्स तो होती है, बट देर आर सर्टेन कंपनीज लाइक LIC और वैसे जो होते हैं जो आप बाय करते हो इंश्योरेंस। सो देर आर कॉमर्शियल इंश्योरेंस आर ऑल्सो देर, बट वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट से वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। द क्लाइंट शुड बी रेफर टू सोशल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज टू अप्लाई फॉर मेडिकेड। तो अभी जो क्लाइंट है जिसकी इनकम कम है, सो यू हैव टू रिफर दोज क्लाइंट टू सोशल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज है कि जिसकी मदद से वो मेडिकेड इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सके। बिकॉज उनको पता ही नहीं होगा कि हाँ दे आर एलिजिबल फॉर दिस, तो आपको उनको रिफर करना होगा कि वहां पर जाके मिल के आओ। लाइक इन इंडिया देर इज अ माँ कार्ड एंड अनदर थिंग इज देयर, कुछ दूसरी भी फैसिलिटी है, आयुष्मान कार्ड, यस हाँ। सो हु आर एलिजिबल, तो आप उनको भेजना पड़ेगा। दे विल टेल देम कि हाँ यू आर एलिजिबल, आपकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो करके देंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या है उनमें? सो रिस्क फैक्टर्स आर फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पैसे ही नहीं है।
सो रिस्क फैक्टर भी दोनों के सेम होंगे और हेल्थ केयर कंसिडरेशंस भी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल और इनकी भी सेम होगी, बिकॉज द कॉमन प्रॉब्लम इज मनी, दोनों के पास पैसे नहीं है, दे आर हैविंग लो फाइनेंशियल स्टेटस. Next is intellectually disabled individuals. What is intellectually disabled individuals? Physical disability. Online students. What is intellectually disabled individual? mental disability. Those who don't have knowledge about disease condition. No. Mental disorder. Mental disabled. Okay. So every intellectually disabled person is mentally unhealthy. No, No. Yes or no, ma'am. so? Every mentally unhealthy people is intellectually disabled. Maybe yes. I don't. Intellectual मतलब कि जिन्हें thinking में problem છે. Yes. The person who are not having good cognition. They are not intellectually fit. So it is not like that कि हर intellectual disabled person mentally unhealthy होगा. It is not like that. हाँ, but हर mental disorder वाला patient intellectually disabled होगा. Understood the difference? Yes, ma'am. हाँ. Yes. Yes. So intellectually disabled individuals are at high risk for certain health disorders. ये जो people होते हैं उनमें certain disorders के risk ज्यादा होते हैं. Often these health disorders go untreated due to atypical symptom presentations, which leads to additional problems later in life. Sometimes क्या होगा, they are already intellectually disabled, उन्हें पता ही नहीं, उनका cognition अच्छा नहीं है, तो कोई भी बीमारी होगी उनको, सो वो अनट्रीटेड ही रह जाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ एटिपिकल सिम्टम प्रेजेंटेशन. उन्हें अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, जो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आएंगे, सो पता ही नहीं चलेगा कि ये पेशेंट को ये बीमारी है, एंड द डिजीज विल लेफ्ट अनट्रीटेड. उसकी वजह से क्या होगा, लेटर ऑन लाइफ में उसकी कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज डिजीज तो प्रोग्रेस होगी, सो लेटर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. Communication barriers between healthcare professionals and those with an intellectual disability presents a unique challenge in identifying and managing healthcare needs in this population. एक तो पहले तो communication is the barrier. जो intellectually disabled है, शायद उनको याद नहीं रहता, बोलने में प्रॉब्लम कुछ भी है, सो उसके साथ आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, हिस्ट्री कैसे निकालोगे, कैसे आपको उनको पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज अ मेजर चैलेंज. एक यूनिक ही चैलेंज है उनमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे मैनेज करोगे. So that is a challenging thing to communicate with this type of people. These clients may have difficulty in recalling their personal medical history. अगर आप इनको पूछोगे उनकी medical history के बारे में, so वो recall भी नहीं कर पाएंगे because they are not cognitively fit. So medical history भी वो आपको recognize नहीं कर पाएंगे. So it may be necessary to take more time to ask question in variety of different ways. So आपको क्या करना पड़ेगा, different ways में उनको question पूछना पड़ेगा, और इनका असेसमेंट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. यू हैव टू लाइक आस्क द क्वेश्चंस सो फ्रीक्वेंटली, गोल गोल करके, घुमा घुमा के आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. मोर कॉमन हेल्थ कंडीशंस इंक्लूड, अभी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल में कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन है, यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. सो एपिलेप्सी, दैट इज द मोटर डेफिसिट फर्स्ट. उनमें पहला प्रॉब्लम है मोटर डेफिसिट. व्हाट इज मोटर डेफिसिट? Movement में problem. Yes, there is a problem with the movement. एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होगा. व्हाट इज एपिलेप्सी? Recurrent seizure આવે છે. Yes, the recurrent seizures are called epilepsy. Allergies, otitis media. What is otitis media? New students will speak. Specific. In which part of it? Inflammation of middle ear. Inflammation in the middle ear. Middle ear due to infection. Yes. GERD, that is gastroesophageal reflux disease. Dysmenorrhea. What is dysmenorrhea? Painful menstruation. What is dysmenorrhea? Abnormal, Painful maybe. menstruation. Yes.
पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो उनको शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। सो ऐसा हो सकता है, एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक कि हाँ उनको मेंटल हेल्थ होंगे, बट समटाइम्स दे मे एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, vision and hearing impairments, constipation and oral health problems. These are the common problems in intellectually disabled individuals. These clients may tend to eat quickly and so should be assessed for risk of choking and aspiration. वो ये जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल है वो क्या करेंगे, एकदम फटाफट खाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, चोकिंग का रिस्क ज्यादा है। तो हमें असेस करना होगा कि वेदर दे आर एक्सपीरियंसिंग चोकिंग, और खाते खाते शायद एस्पिरेट हो जाए तो दे विल इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो हमें उनको ये फिजिकली असेस करना होगा। Certain condition can cause changes in behavior. For example, there may be eating disturbances due to GERD or self-injury due to the presence of an ear infection. उनके बिहेवियर में चेंजेस होगा, उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट क्या होगा, जीईआरडी है तो उसकी वजह से ईटिंग जो डिस्टर्बेंसेस, जो नॉर्मल उसकी ईटिंग पैटर्न थी वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ईयर इन्फेक्शन है, सो पेशेंट को इतना दर्द हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है, पर पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, सो सेल्फ इंजरी करना स्टार्ट कर देगा पेशेंट। तो देर इज अ चेंजेस इन बिहेवियर, उनको कोई भी कंडीशन होगी तो उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। हेल्थ केयर कंसिडरेशंस आपको क्या ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर गिविंग केयर टू इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स? सेफ्टी इज द प्रायोरिटी एंड एंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट। दे डोंट नो, उनको पता नहीं है, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर कि उनके लिए क्या सेफ है क्या नहीं है। सो सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, यू हैव टू एंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट। फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। वी नो, हमने आगे ही स्टडी किया था कि उनमें एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से पता नहीं चलता कि उनको क्या प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द वी हैव टू असेस द बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल पैटर्न से आपको शायद पता चल सके कि कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम है और यू कैन ट्रीट दैट। अवेयरनेस ऑफ ऑल्टर्ड बिहेवियर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इलनेस is important in early identification and prevention of secondary problems. हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ये डिजीज कंडीशन है तो कैसा बिहेव करेगा पेशेंट। सो उससे क्या होगा, आपको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा कि व्हाई द पेशेंट इज बिहेविंग लाइक दिस। पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है तभी वो ऐसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर ऑल्टर हो गया है। सो अर्ली स्टेज में ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सको और सेकेंडरी वो प्रोग्रेस ना हो जाए, सेकेंडरी स्टेज में ना चला जाए। Sorry. Health interventions must be focused on treating medical conditions, followed by behavioral interventions to prevent continued behavioral response to an illness. आपको फोकस किस पर करना है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया उस पर, कि उसको जो मेडिकल कंडीशन है उस पर फोकस करना है? किस पर फोकस करना है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किस पर फोकस करोगे आप, मेडिकल कंडीशन पर कि या उसका बिहेवियर जो चेंज हुआ है उसकी वजह से उस पर फोकस करना है? मेडिकल। फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट दैट मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन ट्रीट हो जाएगी तो जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा पेशेंट का। सो फर्स्ट आपको मेडिकल कंडीशन के ट्रीटमेंट पर फोकस करना है, देन यू हैव टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ पेशेंट। पेशेंट का बिहेवियर भी धीरे धीरे मैनेज करना है। जो अगर उसका कंटिन्यूअस बिहेवियर है तो आपको उसको मैनेज करना होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव, दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर केयरिंग फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन। Next is battered individual and victims of abuse or neglect. What is that? Online students. Online students. What is battered individual and victims of abuse or neglect? બેટર મીન્સ જેને આમ બહુ મારે ને એવું બધું કરે. हाँ, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिन लोगों ने बहुत मार खाया है। और दूसरा विक्टिम्स ऑफ अब्यूज और निग्लेक्ट मींस कैसे इंडिविजुअल्स, विच टाइप ऑफ अब्यूज?
यस, एनी काइंड ऑफ अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, कोई भी अब्यूज हो रहा है और निग्लेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। निग्लेक्ट कौन लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं? elder, एल्डर पीपल, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। सो वैसे इंडिविजुअल्स में क्या कॉमन है? लेट्स स्टडी। द फर्स्ट इज रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट, healthcare professionals are often the first point of contact for a victim of abuse or neglect। ये अब्यूज का पेशेंट है, निग्लेक्ट का पेशेंट है, तो पहला कौन है जो इनको मतलब कांटेक्ट करेगा? सो द हेल्थ केयर पर्सनल्स, हम ही लोग हैं जिनको पहले पता चलेगा कि ये अब्यूज के विक्टिम्स है या निग्लेक्ट के विक्टिम्स है। वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ पर्सन कि जिनको पता चलेगा। वो दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, बट व्हेन यू आर डूइंग असेसमेंट, यू आर द फर्स्ट पर्सन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पीएचसीपी है, नर्स है, जिसने भी पेशेंट को देखा है, दैट पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन कि जिसको पता चला कि हाँ ये पेशेंट विक्टिम, ये विक्टिम है अब्यूज और निग्लेक्ट का। अब्यूज ऑफ द ओल्डर क्लाइंट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 20, एंड मेंटल हेल्थ में भी हमने देखा था चैप्टर 68 में। So child abuse, what is that? Consequences are long lasting, both impacting initial development and influencing adult health। अगर कोई चाइल्ड है जिसका बचपन से लाइक अब्यूज हो रहा है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? लॉन्ग लास्टिंग होंगे। बचपन में ही, इन चाइल्डहुड पीरियड उसके साथ अब्यूज होगा, सो जब तक वो एडल्ट होगा, मतलब ड्यूरिंग हिज होल लाइफ उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। एंड इनिशियल डेवलपमेंट में भी उसका प्रॉब्लम होगा, चाइल्डहुड में भी उसका अच्छे से डेवलप नहीं पाएगा। एंड जब वो एडल्ट हो जाएगा तब भी उसके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, उसके बिहेवियर अलग होंगे। सो एक ट्रॉमा है जो एडल्ट तक वो चलता है अगर अब्यूज हुआ है तो। some of the outcomes of abuse or neglect may include physical, somatic, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, सेक्सुअल एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड इफेक्ट्स। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका बचपन में ही अब्यूज हुआ है या निग्लेक्ट हुआ है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? फिजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं पेशेंट का, बिकॉज अगर फिजिकल अब्यूज हुआ होगा तो फिजिकल डिफॉर्मिटी होगी। सोमेटिक, व्हाट इज सोमेटिक? फिजिकल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स, यस, फिजिकल सिम्टम्स दैट इज सोमेटिक सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर, बिहेवियरल चेंजेस होंगे, वो बच्चा बिहेवियर भी अलग बिहेव करेगा। सेक्सुअल चेंजेस भी उसमें देखने को मिलेंगे अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो। प्रेगनेंसी रिलेटेड इफेक्ट्स भी उसमें देखने को मिलेंगे। चिल्ड्रन बर्थ टू 1 year of age are at risk for maltreatment। जो चाइल्ड है जिसका जन्म से लेके 1 साल तक की जो एज है, उसमें माल ट्रीटमेंट की रिस्क ज्यादा है। द मेजोरिटी आर विक्टिम्स ऑफ निग्लेक्ट, और ये लोग जो है बच्चे, वो निग्लेक्ट का शिकार ज्यादा होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग केयर प्रॉपरली। वो निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी फीडिंग नीड, उसकी जो भी नीड है वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो रही। मैटरनल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पेरेंटल बिहेवियर इश्यूज इम्पैक्ट द चाइल्ड्स रिस्क। एक तो पहला तो मैटर, जो मदर है उसकी केयर कर रही है, सो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होगा, सो वो अच्छे से बेबी की केयर कर पाएगी? नो, शी विल नॉट केयर फॉर द बेबी इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। और पेरेंट्स का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। पेरेंट्स दोनों, मतलब जो चाइल्ड के पेरेंट है, दे आर हैविंग ऑड बिहेवियर, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड को निग्लेक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। सो देर आर 2 factors which increases the risk of child neglect। First, तो maternal socio-economic status, it is not only related to matter, both paternal, दोनों का socio-economic status नहीं अच्छा है तो निग्लेक्ट के रिस्क है, और पेरेंटल बिहेवियर भी डिपेंड करता है। Victims are prone to certain health effects as a result of abuse or neglect. These effects can include bruises, sprain or broken bones, chronic fatigue, shortness of breath, मसल टेंशन, इनवॉलंटरी शेकिंग। आपने देखा होगा कि जो लोग अब्यूज और निग्लेक्ट का शिकार होते हैं ना, तो वो डरे हुए लगते हैं। इनवॉलंटरी शेकिंग आपको दिखने को मिलेगा। चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड फर्टिलिटी इश्यूज। ये जो विक्टिम्स है वे सब ये आपको देखने को मिलेगा। दिस आर द साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस आर द विक्टिम्स। मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन अराइज इंक्लूडिंग पीटीएसडी। अगर बचपन में उसका अब्यूज हुआ है, सो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उसमें स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक पीटीएसडी। व्हाट इज पीटीएसडी?
Yes, online students, new students, any idea about PTSD? What is that? પાસ્ટમાં કોઈ પેઇનફુલ ઇવેન્ટ હોય તમારી જોડે ઘટી ગયો હોય તો એને લીધે ટ્રોમા હોય અને સ્ટ્રેસ થાય PTSD. यस यस, पेशेंट कोई भी पर्सन है जिसके साथ कुछ ऐसी कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से ट्रॉमा के बाद उसको फ्लैशबैक्स आएंगे, स्ट्रेस होगा, सो दैट इज PTSD. नाइटमेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे, नाइट टाइम्स में पूरे सपने आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंशियस रहेगा पेशेंट, अनकंट्रोलेबल थॉट्स आएंगे, सारे बैड थॉट्स आएंगे, डिप्रेस हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम भी उसकी कम हो जाएगी, एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज भी वो स्टार्ट कर देगा टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन. उसको लगेगा कि अल्कोहल की हेल्प से वो उससे बाहर निकल जाएगा, सो अब्यूज भी स्टार्ट हो जाएगा. सो इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. These are the common health problems in battered individual and victims of health abuse and neglect. Feelings of hopelessness, lack of worth, apprehension, discouragement, inability to trust others, and lack of motivation are also common. उनमें एक होप ही नहीं रहेगी, उनको लगेगा कि दिस इज देयर लाइफ और वो एक्सेप्ट कर लेंगे. उनको ऐसा होगा ही नहीं कि हाँ वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं एंड समवन कैन सेव देम. देयर विल बी नो एनी होप. उनको लाइक वर्थनेस, वर्थ भी फील नहीं होगा. दे बिकम अप्रीहेंसिव, डिस्करेजमेंट होगा, किसी पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड देयर विल बी लैक ऑफ मोटिवेशन. Children who witness violence are prone to fearfulness, anxiety, depression, and problems in the school. Sometimes कैसा होगा कि घर में, for example, male female पर abuse कर रहा है and the child is witnessing this violence. So वो child क्या हो जाएगा, fearful हो जाएगा, वो भी एंशियस हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, एंड स्कूल में भी प्रॉब्लम्स होंगे, एब्सेंटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, इनअटेंटिवनेस देखने को मिलेगी चाइल्ड में. तो जो चाइल्ड ने विटनेस किया है उसे भी प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट, हेल्थ केयर कंसिडरेशन फॉर बैटर्ड इंडिविजुअल्स एंड विक्टिम्स ऑफ अब्यूज और निग्लेक्ट. क्या हेल्थ केयर कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखनी है? सो सेफ्टी इज द प्रायोरिटी. Provide a safe environment and ensure that victim has a safe environment in which to live and is provided with contact information for seeking a safe haven if necessary. Yes, आपको पेशेंट को है जो आपके पास आए उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है. पहले तो वो डरा हुआ है, वो अब्यूज का शिकार होकर आपके पास आया है, सो यू हैव टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट. एंड विक्टिम को आपको एंश्योरिटी देनी है कि आप जहां पर भी हो, दिस इज सेफ, यहाँ पर आपको कोई हार्म नहीं करेगा, एंड वी हैव अ सेफ एनवायरनमेंट जहां पर आप रह सकते हो अदर देन योर होम. आपको घर पे ऐसा हो रहा है, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू वन सेफ एनवायरनमेंट, आप कांटेक्ट करके दोगे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओज एंड सोशल वर्कर्स कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो विक्टिम्स हैं, उन लोगों को सेफली वहां पर प्लेस करेंगे. तो आपको वो पेशेंट को एंश्योरिटी देनी है. ट्रीट विक्टिम विद अ कंपैशन एंड रिस्पेक्ट. जो आपके पास आया है विक्टिम, वो आपको पहले नहीं बोलेगा कि दे आर द पेशेंट ऑफ अब्यूज. आपने आइडेंटिफाई किया है, सो ऐसे पेशेंट को कंपैशन के साथ एंड रिस्पेक्ट के साथ आपको ट्रीटमेंट देनी है. एक्नॉलेज द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ ईच पर्सन. उनको उनकी डिग्निटी, लाइक डिग्निटी इन द सेंस उनकी रिस्पेक्ट जो हम बोलते हैं, यस. तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्नॉलेज करना है उस पेशेंट को. नर्स आर मैंडेटेड रिपोर्टर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज इंसिडेंट्स. जब भी आप कोई पेशेंट कम्युनिकेट कांटेक्ट करते हो कि जो विक्टिम है अब्यूज का, वायलेंस का, निग्लेक्ट का, सो यू हैव टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट. डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस, अब्यूज वाले इंसिडेंट्स आपको रिपोर्ट करने होंगे. अगर पेशेंट आपको बोल रहा है कि प्लीज डोंट टेल एनीवन, सो व्हाट यू विल डू? पेशेंट आपको बोल रहा है, आपके पास एक पेशेंट आया, लेट मी गिव यू वन सिचुएशन. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास एक पेशेंट आया, व्हाइल यू आर डूइंग असेसमेंट आपने ब्रूसिस देखे और वैसा सब देखा. यू आइडेंटिफाइड कि पेशेंट है वो अब्यूज वाला है. आपने पेशेंट को एक बार क्वेश्चन पूछा कि आर यू ओके, आर यू फीलिंग सेफ एट योर होम, ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे. डायरेक्टली आप अब्यूज का ऐसे नहीं पूछ सकते, यू हैव टू इनडायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन. सो पेशेंट ने बोला पहले कि यस आई एम सेफ, बिकॉज उसको डर है कि अगर जो भी उसका अब्यूज कर रहा है वो उसको पता चल जाएगा, सो फिर से उसको मार पड़ेगा. सो उसने पहले आपको बोला कि हाँ शी इज सेफ.
बट जैसे जो रिलेटिव है जो अब्यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल उसका हस्बैंड, वो थोड़ा दूर चला गया, सो पेशेंट ने आपको बोला कि यस दिस इज ट्रू बट प्लीज डोंट टेल एनीवन, सो व्हाट यू विल डू? बट पेशेंट ने आपको बोला कि प्लीज डोंट इन्फॉर्म एनीवन, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट यू विल डू? It's mandatory to inform. बट व्हाट अबाउट पेशेंट? पेशेंट ने बोला कि नहीं इन्फॉर्म करना है, तो पेशेंट को ऐसा बोलोगे कि नहीं मैं तो करूंगी, ऐसा बोलोगे? We have to ensure the patient कि nothing will happen to you, this is safe, I will not tell anyone from your family but I have to report this incident further, और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, योर सेफ्टी विल बी एंश्योर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वी विल प्रोवाइड यू वन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन एंड वी विल प्रोवाइड यू अ सेफ एनवायरनमेंट जहां पर जाके आप हेल्प ले सकते हो, बट आई हैव टू रिपोर्ट दिस, ऐसे पेशेंट को आपको इंश्योरिटी करनी है। पेशेंट को डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकती नहीं आई हैव टू रिपोर्ट, मैं तो रिपोर्ट करूंगी, पेशेंट को समझाना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल बी सेफ, पर मुझे आगे रिपोर्ट करना पड़ेगा, दिस इज माई ड्यूटी, पर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम एक सेफ प्लेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द इंटरवेंशन। सो reporting is mandatory. It may be necessary to take photographs of injury for legal reasons. Yes, अगर कोई इंजरी ऐसी हुई है तो आप फोटोग्राफ भी ले सकते हो, इट इज लीगल, फोटोग्राफ्स लेने हैं, बट मेक श्योर पेशेंट का फेस रिवील नहीं होना चाहिए, अगर फेस पर ब्रूसेस है तो क्या करोगे? हाँ, वी हैव टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, पेशेंट का फेस रिवील, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, बट व्हाई वी आर टेकिंग फोटोग्राफ्स? फॉर अ प्रूफ कि this much injury has occurred to the patient, that's why we are taking photograph, not to reveal the face of the patient. So this is how you have to take the photographs. Cleaning and dressing wounds, administering pain medications, use of assistive devices such as for sprains or fractures, education for self-management and seeking safety and emotional support may be needed in care of these victims. Yes, जो भी उनको इंजरी हुई है, लगा है, तो उसका ड्रेसिंग भी करना पड़ेगा आपको, पेन होगा पेशेंट को, लगा है तो पेन मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, अगर फ्रैक्चर हुआ है, स्प्रेन हो गया है, तो असिस्टिव डिवाइसेस भी पेशेंट को देना पड़ेगा, चलने के लिए तो प्रॉब्लम होगा ना, फिर उसको सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेट करना है कि अगर फिर से हो ऐसा तो कैसे खुद को बचाओगे, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, हेल्प कहाँ पर लेने जाओगे, टू whom you will contact कि you are suffering from a problem again, तो हेल्प कहाँ से लेनी है, सीकिंग सेफ्टी, कैसे सेफ्टी लेनी है, सीख करनी है, वो सब आप एजुकेट करोगे पेशेंट को, एंड इमोशनल सपोर्ट इज मस्ट, ये पेशेंट जो है दे आर सो लाइक इमोशनली डिप्रेस हो जाएंगे, सो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा ऐसे विक्टिम्स को। प्रोवाइड parental education and support programs, increase awareness of potential battering and abuse or neglect, पेरेंटल एजुकेशन भी देना होगा, अगर कोई चाइल्ड है जो निग्लेक्ट का शिकार है, सो चाइल्ड को कैसे आप एजुकेट करोगे, उसके पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड लाइक दिस, तो पेरेंटल एजुकेशन देना पड़ेगा, सपोर्ट प्रोग्राम्स इन द सेंस ऑफ पेशेंट आपको बोलेगा कि हमारे पास मैम हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे करेंगे, सो यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट प्रोग्राम्स लाइक देयर आर सर्टेन एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस की जहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो टेक हेल्प ऑफ दैट। सो ऐसे सब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे बैटरिंग के रिगार्डिंग, जिसको मार पड़ता है, अब्यूज और निग्लेक्ट के रिगार्डिंग आप अवेयरनेस फैलाना है आपको। सो लेट्स टुडे आज के लिए इतना ही, सिंगल पेरेंट्स के से आप कल देखेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ अवर टुडेज क्लास, आज हमने क्या देखा। ओके, so we have completed with the healthcare consideration of minority groups, जो minority groups है उसमें care करते वक्त आपको क्या considerations ध्यान में रखने हैं, read this, you should know कि हाँ this consideration, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनॉरिटी ग्रुप का है, सो मुझे क्या चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो कल्चर के बारे में ध्यान में रखना है, लैंग्वेज बैरियर होगा माइनॉरिटी ग्रुप में, सो लैंग्वेज बैरियर के बारे में ध्यान में रखना है, और जो भी पर्सन आपके पास आया है लाइक तो
वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, सो व्हाट यू विल डू? हाँ, इंटरप्रीटर के बारे में इनमें ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी ग्रुप, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। होमलेस और उसमें ये लैंग्वेज बैरियर के चांसेस कम है, बिकॉज दे आर नेटिव ऑफ दैट प्लेस, बट ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दे आर डिफरेंट। बट जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, सो इंटरप्रीटर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। You cannot family members, friends, and other nurses to become an interpreter. You will always require a professional interpreter जो हॉस्पिटल ने, जो हेल्थ केयर एजेंसी ने हायर किया है, उसको ही आपको बुलाना होगा। देन हमने LGBTQ ग्रुप देखा। LGBTQ ग्रुप में कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमन है? STI, देन कैंसर्स। कौन से कैंसर्स? Cervical breast. सर्वाइकल, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, टेस्टिक्यूलर, जो भी कैंसर्स है वो उनमें प्रिवेलेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ नली पैरिटी, दे कैन नॉट बिकम अ पेरेंट, तो पेरेंट नहीं बन सकते, तो उसकी वजह से इसका रिस्क ज्यादा है। दूसरा क्या रिस्क ज्यादा है उनमें? यस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी उन लोगों में ज्यादा है। So what is the really important point? दो पॉइंट्स थे ये जो रेड इंपॉर्टेंट थे, उसमें दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो LGBTQ ग्रुप वाले लोग हैं, व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब एल्डरली फेज में चले जाते हैं या फिर कुछ डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उनके पास केयर करने के लिए कोई नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर। उनके पेरेंट्स भी नहीं है, उनके चाइल्ड भी नहीं है, उनके सिबलिंग्स भी नहीं है, कोई नहीं है उनके पास केयर करने के लिए। सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट दे फेस। दूसरा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं वो लोग? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Spouse ની ડેથ થઈ જાય તો પણ પછી એમને કોઈ બેનિફિટ્સ નહીં મળે ને. जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, अगर स्पाउस की डेथ हो जाएगी तो दूसरे पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा, बेनिफिट मिलते रहेंगे, बट ऐसे जो LGBTQ ग्रुप वाले हैं उनको कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो उसकी वजह से उनको लेटर ऑन फाइनेंशियल इश्यूज हो गए और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यूज। तो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। हेल्थ केयर कंसिडरेशंस आपको क्या ध्यान में रखनी है? फर्स्ट तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका जेंडर क्या है। तो कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली आस्किंग फॉर द जेंडर, आप पेशेंट को पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, हाउ शुड आई कॉल यू, बाय ही शी, कैसे नाम से आपको बुलाऊं, क्या बुलाऊं। एंड अदर थिंग, हॉस्पिटल में ना कि सिर्फ मेल और फीमेल, देयर शुड बी अदर्स में भी कैटेगरीज हो कि आपको कौन सी है। देयर मस्ट बी आर ब्लैंक, कि उसमें वो खुद से लिख सके कि कौन सी पर्टिकुलर जेंडर है उनका, LGBTQ ग्रुप में भी कौन सा मेंबर है वो, सो दे कैन राइट। तो एक तो ऐसे करना है। फिर नॉन जजमेंटल वे में आपको केयर देनी है। देन नॉर्मली ये लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? ड्यू टू द स्टिग्मा, देयर इज अ स्टिग्मा कि सब लोग उनको अलग से ऐसे करेंगे, सो वो हॉस्पिटल नहीं जाते। उनमें आपको हेल्थ एजुकेशन क्या देना है? कैंसर रिलेटेड, STI कैसे प्रिवेंट करना है, डिप्रेशन, सुसाइड रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। फिर नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इनमें ध्यान ज्यादा देना है। ऑक्यूपेशनल किस में दोगे आप? जो हेल्थ वर्कर्स है एंड दोज हु आर प्रोस्टिट्यूट्स, ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन दे आर हाई रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन और STI, बट इनमें ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, बट ड्यू टू सेम जेंडर सेक्स प्रैक्टिसेस और उसकी वजह से उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। सो प्रोफाइलेक्सिस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर हार्मोन थेरापी के रिलेटेड आपने देखा था कि जो ट्रांसजेंडर्स है वो हार्मोन थेरापी लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है। एक एग्जांपल दिया गया था कि जो टेस्टोस्टेरॉन एक्सेसिव लेगा तो उसको पॉलीसाइथेमिया होगा। फिर जो ट्रांसजेंडर्स है, जिन लोगों ने रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है, लाइक मेल टू फीमेल हुए या फीमेल टू मेल हुए, दोनों में आपको दोनों बायोलॉजिकली भी जो उनके पास ऑर्गन्स थे उसके कैंसर का भी स्क्रीनिंग करना है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्होंने जो ऑर्गन्स किए हैं उसका भी स्क्रीनिंग करना है। तो दोनों में आप मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ऑर्गन का स्क्रीनिंग करोगे। अगर वो मेल में से फीमेल बने हैं तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी करना है, सर्वाइकल कैंसर भी स्क्रीनिंग करना है, टेस्टिक्युलर भी स्क्रीनिंग करना है, बिकॉज अर्लियर ही वॉज मेल, राइट नाउ ही बिकम अ फीमेल। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था होमलेस।
होमलेस मीन्स ऐसे पीपल जिसके पास घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ होमलेस होते हैं, इट कुड अफेक्ट फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। आपने अभी देखा होगा कि अर्लियर दे वर सो रिच एंड अभी उनको घर से निकाल दिया है, बच्चों ने लाइक पेरेंट्स को छोड़ दिया है। सो अर्लियर दे वर रिच बट राइट नाउ दे आर होमलेस। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि इसको ही अफेक्ट करेगा, कोई भी बैकग्राउंड का पर्सन होमलेस हो सकता है। एंड समटाइम्स पूरी की पूरी फैमिली भी होमलेस हो सकती है। उनमें क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा है दैट वी हैव सीन कि डेंटल प्रॉब्लम्स, माल न्यूट्रिशन, एसटीआई, लंग डिजीजेस, infectious and communicable diseases, mental health problems, substance abuse problems, and wound and infections बहुत common है। Frostbite is also common in homeless. This is another thing. क्यों frostbite common है? Due to harsh weather. Homeless people के में frostbite बहुत common है। ये question when I was solving U word बहुत ज्यादा आता था। Frostbite is common in homeless. Remember this thing. Frostbite homeless में ज्यादा होगा. It is not given in the list, but it is common in homeless people. So ये सब आपको ध्यान रखना है। जो चाइल्ड है वो फ्रिक्वेंटली सिक हो जाएगा, इनअटेंटिव हो जाएगा। और जो यूथ है उसमें कौन से प्रॉब्लम ज्यादा मिलेंगे? रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। कैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स? यस, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, yes, unprotected sexual practice and unintended pregnancies, these are the risk taking behaviors। वो उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगा। so this is the concern। हेल्थ कंसिडरेशंस आपको क्या ध्यान रखनी है? so first उनमें जो वो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर पहले ध्यान दो, बिकॉज अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे so they will not come again to you, फिर से आपके पास नहीं आएंगे वो लोग। और एक चीज खास ध्यान रखनी है, जो भी होमलेस पीपल हो उसमें मेडिसिन रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखनी है? सेफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवानी। सेफ मेडिकेशंस, सर्टेन मेडिकेशंस आर देयर जिसका अब्यूज हो सकता है एंड होमलेस पीपल आर एट हाई रिस्क फॉर अब्यूजिंग। सो ऐसे मेडिसिन उनको नहीं देनी है। ये लोग होते हैं वो स्टिक नहीं रहेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी नहीं, और जो आप रेकमेंड करोगे उस पर भी वो स्टिक नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू टेक अ क्लोज फॉलोअप कि हाँ हमने जो बोला था वो कर रहे हैं कि नहीं। You have to do all these things। Socio-economically disadvantaged people means ऐसे लोग जिसको socially और economically financially they are not stable। so उन लोगों में प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। सो क्रोनिक डिजीजेस उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे जो अर्ली स्टेज में प्रिवेंटेबल थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड लैक ऑफ फाइनेंसेस वो लोग हॉस्पिटल में आए नहीं और प्रिवेंट हुआ नहीं। सो उनको लाइक क्रोनिक प्रॉब्लम हो गया। जो बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में ही अच्छे से फूड नहीं मिला, अच्छे से केयर नहीं मिली, सो लेटर ऑन उनमें भी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखनी है? सो फर्स्ट तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स वो लोग भी करेंगे ड्यू टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स, वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करेंगे। फिर आप सोशल सर्विसेज के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि देयर आर सर्टेन एनजीओज एंड सोशल सर्विसेज जिसकी हेल्प से आप हेल्थ केयर ले सकते हो। देन अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स, ये लोग भी सेम, उनके पास पैसे नहीं है, दे आर हैविंग लो इनकम, उसकी वजह से उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, या फिर है तो अंडर इंश्योरेंस है, ज्यादा कवरेज नहीं मिलता है। सो उसकी वजह से जो क्रोनिक डिजीजेस है उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीकिंग द हेल्थ इन अ प्रिवेंटेटिव स्टेज। जब था तभी वो हॉस्पिटल नहीं गए एंड द डिजीज हैज बिकम प्रोग्रेस। तो इसमें भी क्रोनिक डिजीजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सम मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस कवरेज एम्प्लॉयर करता है, बट अगर एम्प्लॉयर बोले कि वी आर नॉट कवरिंग यू, तो वो लोग अंडर इंश्योरेंस रहेंगे। बट देयर इज एन ऑप्शन, मेडिकेड एक ऑप्शन है जो लो इनकम वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है, वो एक ऑप्शन है। सो आपको वो सजेस्ट करना है। यू हैव टू टेल कि हाँ देयर आर सर्टेन सोशल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर जाके आप मेडिकेड निकाल सकते हो। एंड अदर कॉमर्शियल इंश्योरेंस इज ऑल्सो देयर, बट दैट इज कॉस्टली, वो कॉस्टली होगा। रिस्क फैक्टर्स एंड हेल्थ केयर कंसिडरेशंस आर सिमिलर टू सोशियो इकोनॉमिक, जैसा उसमें था, बिकॉज इसमें भी फाइनेंशियल इश्यू ही है। तो वहां पर आप सेम होगा दोनों का। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स मींस दे आर नॉट कॉग्निटिवली हेल्दी, उनका कॉग्निशन अच्छा नहीं है, तो उनको भी सर्टेन डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट उनको पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि डिसऑर्डर है, वो अनट्रीटेड रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एटिपिकल सिम्टम प्रेजेंटेशन। उनको कोई डिजीज है तो वो सिम्टम्स शो नहीं होंगे, उसके अलावा वो बिहेवियरल चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, एक तो
बहुत चैलेंजिंग है, इनके पास से इंफॉर्मेशन निकलवानी, इट इज सो डिफिकल्ट, यू कैन नॉट टेक आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पीपल। और उन लोगों में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलेंगे? सो मोटर डेफिसिट, एपिलेप्सी, एलर्जी, ओटाइटिस मीडिया, जीईआरडी, डिस्मेनोरिया, स्लीप प्रॉब्लम्स, mental health problems, vision and hearing impairments, constipation and oral health problems. These are the common health problems in intellectually disabled person. So उनमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, देयर विल बी ऑल्टर्ड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जिसको जीईआरडी है तो उसका ईटिंग डिस्टर्बेंस से स्टार्ट हो जाएगा, जो ईटिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ईयर इन्फेक्शन है तो सेल्फ इंजरी करना स्टार्ट कर देगा। सो हेल्थ केयर कंसिडरेशन क्या करनी है? सेफ्टी हमें मेंटेन करनी है, एंड वी हैव टू बी अवेयर। ऐसे पेशेंट में आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज हैविंग सम हेल्थ इश्यू? ओनली बाय आइडेंटिफाइंग बिहेवियर चेंज। दिस बिहेवियर, जो ऑल्टर बिहेवियर, उससे ही आपको पता चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि हाँ पेशेंट का बिहेवियर ऑल्टर हो गया है, सो देयर माइट बी रिस्क कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो आप अर्ली उसको प्रिवेंट कर सको, सेकेंडरी प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। सो पहले आपको क्या ट्रीट करना है? जो मेडिकल कंडीशन है वो ट्रीट करनी है जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हुआ है। ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बट देन आपको बिहेवियर पर फोकस करना है, पहले मेडिकल कंडीशन, देन यू हैव टू डू द बिहेवियरल इंटरवेंशंस। फिर हमने देखा बैटर्ड इंडिविजुअल्स एंड विक्टिम्स of abuse or neglect. What is the red important point? Yes, online students. What is the red important point? जो भी निग्लेक्ट और अब्यूज वाले पेशेंट है वो फर्स्ट किससे कांटेक्ट करेंगे? हु आर द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चलेगा कि ये लोग अब्यूज वाले विक्टिम्स है? Healthcare professionals. healthcare professionals. We are the first person जो डायरेक्टली देखते हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसे है। तो चाइल्ड अब्यूज की वजह से उसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होगा, निग्लेक्ट की वजह से और अब्यूज की वजह से फिजिकल, सोमेटिक, साइकोलॉजिकल, ऐसे सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो चाइल्ड है, बॉर्न हुआ है, वहां से 1 ईयर तक का है, तो वहां पर माल ट्रीटमेंट के रिस्क ज्यादा है और निग्लेक्ट उन पर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है और पेरेंटल बिहेवियर इश्यूज है। पेरेंट्स ही अच्छे से उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। सो जो भी विक्टिम्स है उस पर आपको कैसे साइंस देखने को मिलेंगे? द इफेक्ट्स आर ब्रूसिस, sprains, broken bones, chronic fatigue, shortness of breath. This कैन बी सीन इन दिस पेशेंट। ये देखकर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट विक्टिम है अब्यूज और निग्लेक्ट का। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उनमें स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक पीटीएसडी, नाइटमेयर्स, एंजाइटी, अनकंट्रोलेबल थॉट्स, स्लो सेल्फ एस्टीम, ये सब भी उनमें स्टार्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स। उनमें होपलेसनेस, लैक ऑफ वर्थ, एप्रीहेंशन, ये सब भी उनमें दिखेगा। जो विटनेस चिल्ड्रन जिसने विटनेस किया है वायलेंस, वो भी फियरफुल होगा, एंशियस होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। हेल्थ केयर कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखनी है? फर्स्ट इज द सेफ्टी। उनको इंश्योर करना है कि दैट यू आर इन अ सेफ एनवायरमेंट, यहाँ पर कोई आपको हार्म नहीं करेगा। यू हैव टू ऑल्सो टेल देम कि देर इज वन सेफ प्लेस जहां पर जाके आप रह सकते हो। सो यू हैव टू मेक अ कॉन्टेक्ट, आपको उसको कांटेक्ट देना होगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप कॉल्स कर सकते हो, वो आपको लेने आ जाएंगे, लेके जाएंगे और आपको कोई हार्म नहीं होगा। सो यू हैव टू टेल ऑल दिस थिंग टू पेशेंट। आपको उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। इट इज मैंडेटरी कि आप अगर कोई पेशेंट देखते हो डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर कोई भी वायलेंस अब्यूज का, तो वी हैव टू रिपोर्ट। पेशेंट ना बोले फिर भी हमें रिपोर्ट करना है, बट पेशेंट को इंश्योर करना है यू विल बी सेफ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब मैं रिपोर्ट करूंगी तब। फिर आपको ड्रेसिंग सब चेंज करना पड़ेगा, पेन मेडिसिन देनी होगी, असिस्टिव डिवाइसेस देने होंगे, एंड एजुकेट करना होगा वो फीमेल को या फिर जो एल्डर पर्सन है जो अब्यूज एक्सपीरियंस कर रहा है उसको एजुकेट करना होगा कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, खुद का बचाव, डिफेंस कैसे करना है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो, और कहाँ पर जाके आप हेल्प ले सकते हो अगर फिर से कुछ ऐसा हो तो आप क्या करोगे, whom you will contact, कैसे हेल्प लोगे। सो यू हैव टू टेल ऑल दिस थिंग्स, एजुकेट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, देन पेरेंटल एजुकेशन दोगे, सपोर्ट प्रोग्राम्स दोगे कि जिसकी वजह से वो चाइल्ड की केयर कर सके। अवेयरनेस आपको फैलानी है रिगार्डिंग बैटरिंग एंड अब्यूज और निग्लेक्ट। एनी डाउट टिल दिस? यस और नो?
Online students, only 10 students, 9 students are there. No, बाकी ma'am. सब एक एक करके निकल गए. No, ma'am. Okay. No, ma'am. See you tomorrow at 9 a.m. Thank you.